A very pleasant afternoon to one and all. Today, we all are here for a webinar on the topic mind and memory skills. I think the topic itself is making many things clear to us all. But at the onset, let's welcome Mr. Kumar Rajiv, the guest speaker of today's webinar. I, on behalf of Madam Principal and the whole extended DAV family, extend a very cordial welcome to Professor Kumar Rajiv. It's indeed an honor and privilege to have you amongst us, sir. Before I invite Professor Kumar Rajiv to deliver a talk, I would like to apprise you all with him. Displaying amazing learning power and memory skills, Mr. Kumar Rajiv, an associate professor in the Department of Physics, DAV College Jalandhar, has established several records in the field of memory. He has many achievements or accolades to his credit. Sir has been a proud recipient of Rashtriya Saujanya Award by Punjab Kala Sahitya Academy, certification by British World Records, recorded in Creighton's Book of World Records, Pride of Nations Award, Indian Star Golden Award, APJ Abul Kalam Award, and the list goes on and on. So there are so many accolades to Sir's credit, and we are more than proud to have you here, sir. Professor Kumar Rajiv has delivered more than 100 talks and also undertook trainings on mind and memory skills. The interesting fact is that Professor Rajiv entered the field of memory just 5 years back, 5 to 6 years back in 2015, and that too by default. He has mastered old Greek and Egyptian techniques and memorized a huge amount of data. He has memorized 1,264 numbers, 1,000 digits of exact pi value, days of the week calendar for 1,000 years, 16-point data of all Indian states and UTs, birthdays of more than 1,200 famous personalities. And here also, dear all, the list goes on and on. Just one more thing before I hand over the reins of webinar to Professor Kumar Rajiv. According to Sir, you can take control of your life not only by improved memory, but by learning to control your mind to achieve any worthwhile goal in life. Over to Professor Kumar Rajiv. Thank you so much, Kapil ma'am. Bharti Kapil, sorry. And thank you so much for my introduction. Wonderfully expressed. I am just like your principal ma'am and your teachers. Teaching is my first love. I'm teaching from last 33 years physics to undergraduate and postgraduate classes. It's an honor to be connected to students of various institutes, and it is because of your principal ma'am that she finds talent wherever she gets and contacts for her dear students that they should be given the best from all the speakers all around the nation and even abroad. So thank you so much for inviting me to interact with your brilliant students today on this topic, mind and memory skills. As I told you that I was teaching physics, made so many doctors, made so many engineers. I used to coach also a few years back. But, you know, when, very important point which I'm going to share with you, that is when some dream is identified by your mind, that yes, this is what I want clearly, very much clarity is required. Dreams, we saw some car and we say, oh, that's very good, that's my dream, I want to have that. We see some good house and we say, oh, that's very beautiful, I want to. ये ख्वाहिशें हैं, ये सारी दुनिया लेती है पर ये पूरी नहीं होती ख्वाहिशें, मैं आपको बता दूं.
Dream is that passionate desire for which you have unlimited enthusiasm. और दूसरी बात आपको बता दूं कि ये 98% लोगों के पास नहीं है. Why I start with dream? Because such knowledge is there in abundance on YouTube and Google. They are full of such knowledge if you want to acquire it. It took me 3 to 4 years to learn all these things. And I don't think so. You can, there might be very few people who have so much of patience that they can spend so much of time in learning all these things. So why, instead of so much of knowledge on YouTube and Google, why people are not learning all this, why they are not able to change their lives, why on Google you can find that 98% of the people, they survive on 2% of this mental, spiritual, physical wealth. And 2% on this earth, they enjoy 98. There from, I think, from the beginning only. Why is it so? Then I got the answer. Why I was able to change my life. एक प्रोफेसर की लाइफ क्या होती है? कॉलेज आए, क्लासेस ली, पढ़ाया, एक फैमिली, एक कार, एक घर और एक छोटा सा सर्कल, that's it. But today I am invited all over India by various institutes, various corporates, various organizations for talks, trainings, for these award ceremonies, for keynote speakers. And isn't it a big change in life, somebody's life? How it happens? Anybody can change his or her life. If you are excited by these words, okay, I changed my life from 2 to 3 years. I got my life changed. Why it happened? It is because I was very much clear in my mind what I want. And that was my childhood dream. I thought that my life is going so well. I have played a very good inning in the field of teaching, had a very good rapport. And now let's play second inning. This was the dream which was dormant in my mind, in my brain from last around 50 years. It was the childhood dream, and I used to dream like anything. I used to meditate on it when I didn't know what is meditation. And I used to meditate on it. Nature was doing it. But later on, I came to know that all the people around me, they are not living this life, which I am imagining. So I am middle class people were around me, middle class culture, middle class schools, and everything middle class. And it automatically got suppressed within few years. I can't guess now what was the age when it got suppressed, and I stopped dreaming about it. So what I'm trying to tell you is there is a dream inside you. When I'm saying dream, some files and folders are moving in your brain. If there are many, don't worry. If there is only one, every time it is coming, it is also scaring you a lot and it is exciting you also. Then that is, I think, the dream which you want to have. Or dream एक ऐसी चीज होती है कि you are shown 100 better paths. Okay, this dream is better, this dream is better. But you say, no, this is my dream. I can do anything for it. So students, I want to tell you at young age, you have come to know that YouTube is not going to work, Google is not going to work, but everything is going to work for you. Even you will find your own path to success, provided you have a very, very clear-cut dream in your mind. So very first thing which I want to tell you is work on your dream. Find out. There are many ways of finding out. We are, in our society, there is a scarcity of counselors, genuine counselors, who can guide you that what is your path, in which path you should move. So you have to find out yourself. You know, मैं इस path में memory के field में अचानक a book came in front of me. Book का नाम था Moon Walking with Einstein. That was written with Joshua Fire. और जोशुआ फायर एक रिपोर्टर थे, वो अमेरिका में एक मेमोरी चैंपियनशिप कवर करने गए थे। वहां पे दो लड़कों से दोस्ती हुई, उन्होंने कहा कि आपकी तो बड़ी क्यूरियोसिटी से आप इसको कवर कर रहे हैं, डू यू वांट टू बी वर्ल्ड चैंपियन? उन्होंने वैसे ही मजाक में कह दिया, यस आई वांट टू बी वर्ल्ड चैंपियन।
वो 2 साल उनके साथ एसोसिएटेड रहे और आफ्टर 2 years ही वाज द वर्ल्ड चैंपियन इन मेमोरी। तो ही रोट दैट बुक कि कैसे मेरी जर्नी एक रिपोर्टर से एक वर्ल्ड क्लास मेमोराइजर में कैसे तब्दील हो गई। आप में से भी आज 99% स्टूडेंट सोच रहे होंगे आपने ज्वाइन कर लिया, मे बी शायद अपनी इच्छा से या आप अपने टीचर को खुश करने के लिए ज्वाइन कर गए, बट आप में से 99% यही सोच रहे होंगे कि शायद मेरी मेमोरी जो है ये चेंज नहीं हो सकती। तो आई एट द एज ऑफ 50 मेरी मेमोरी ऐसी हो गई कि मैंने दुनिया में कुछ ऐसे काम कर दिए जो किसी ने नहीं किए थे, जो मैम ने बताए भी। लोकसभा को याद करना मेरे लिए सबसे बड़ा काम था। इंडियन लोकसभा 16th जो थी इससे पहले, उसके 545 एमपीज को के डेटा को याद करना मेरे लिए खुद के लिए एक चैलेंज था। पीरियोडिक टेबल के मास नंबर याद किए, 1500 बर्थडे याद किए, 1300 फोन नंबर याद किए। आई थिंक वो मेरे लिए इतने एक्साइटिंग जो ये था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बहुत से लोगों ने डिस्करेज किया कि ये नहीं हो सकता। दे सेड कि आप इतना डेटा कैसे अपने ब्रेन में फीड कर सकते हो। देन आई टोल्ड देम कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है। मैं आपको बता दूं, पहले तो विश्वास होना चाहिए, तभी आपकी मेमोरी बढ़ेगी। आपके जो ब्रेन है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था जब आप पैदा हुए थे, इसके लिए कोई खर्च तो नहीं किया था। और आप एक मोबाइल 15-20 हजार का लेते हैं तो यू टेक सो गुड केयर ऑफ दैट। लैपटॉप लेते हैं 30-40-50 हजार का, बहुत ख्याल रखते हैं उसका, पर इसका इस्तेमाल कभी सोचा नहीं है, कभी सीखा ही नहीं है, ना ही सिखाया गया हमें। मुझे भी नहीं इसके बारे में पता था। डोंट नेवर फील गिल्टी कि आपको इसके बारे में नहीं पता था। आप 1 लाख का कंप्यूटर भी ले लें, जब तक उसकी वर्किंग नहीं समझेंगे तब तक तो आप उसके ऊपर बेसिक एप्लीकेशन ही कर पाएंगे। वही काम करेंगे जो एक 30 हजार का कंप्यूटर करता है, लैपटॉप करता है, या 1 लाख का करता है, जब तक आप उसको सीखोगे नहीं। तो उसके फुल पोटेंशियल को जानना है तो आपको उसको उसकी वर्किंग को समझना होगा। तो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि ये जो ब्रेन आपके पास है, इसकी कैपेसिटी एक दुनिया के वर्ल्ड क्लास सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा है। यू विल नॉट बिलीव इट। सर्च ऑन गूगल एंड सर्च इंजन में जाके हमारे ब्रेन कैपेसिटी कितनी है। दे रफली दे से इट इज 2 exabytes। और एक्सा कितना होता है? इफ यू आर साइंस स्टूडेंट्स, और इट इज बेसिक किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा। मेगा हो गया 10⁻⁶, गीगा तो एक्सा जो है 10⁻18 होता है। और जो हमारे सुपर कंप्यूटर है वो पीटा बाइट्स की रेंज में है। और अप्रोक्सीमेटली आपके ब्रेन की कैपेसिटी 50,000 टाइम ज्यादा है दुनिया के बेहतरीन सुपर कंप्यूटर से। अब आपको विश्वास क्यों करवा रहा हूं कि आपकी मेमोरी बहुत बढ़िया हो सकती है। नोबडी इज बॉर्न विद पुअर मेमोरी और एवरेज मेमोरी। इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। ये एक मिथ है कि मेरी तो मेमोरी बहुत ही वीक है, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं होता। और हम ये सेंटेंसेस इतने प्यार से बोलते हैं, इतने पैशनेटली बोलते हैं। तो दीज सेंटेंसेस आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। एंड इफ यू से यस मेरी मेमोरी वीक है, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप खुद ही अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मेरी मेमोरी वीक है, एंड इट इज बाउंड टू बी वीक फॉर योर होल लाइफ। यू जस्ट बिलीव कि आपके भी ब्रेन की कैपेसिटी अगर स्वामी विवेकानंद जी के ब्रेन की कैपेसिटी से कंपेयर की जाए, तो स्वामी विवेकानंद एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने ब्रेन की मेमोरी को इतना शार्प किया था बाय सर्टन मेथड, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कि वो एक दिन में 3 किताबें पढ़ लेते थे। और जहां भी वो घूमने जाते थे, जहां कहीं लाइब्रेरी होती थी, उसके पास स्टे करते थे। तो वो अपने दोस्त को मैसेज करते, अपने दोस्त को भेजते थे कि लाइब्रेरी जाओगे तो 3 बुक्स लेके आना। तो लाइब्रेरियन 1-2 दिन 3 दिन देखता रहा। जब रोज 3 किताबें नहीं जा रही हैं तो फिर उसको विश्वास नहीं हुआ। कहता यार ये क्या मजाक है, आप किताब लेके जाते हो, पढ़ते हो नहीं, वापस कर जाते हो। कहता मैं नहीं पढ़ता, मेरे एक दोस्त हैं वो पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि वो ऐसा कभी हो सकता है वो किताबें 3 पढ़ते हो एक दिन में? कहते हैं इस किताब को एक एक को महीना लग जाता है पढ़ने में। तो उन्होंने वो कहा मुझे मिलवाओ उनसे। जब मिलवाया तो बड़े गुस्से से बोले, कहते आप किताबें क्यों मंगवा रहे हो? कहते दोस्त नाराज ना हो, किस पेज पे क्या लिखा आप मुझे पूछो, मैं आपको हर पेज पे बता देता हूँ क्या लिखा है। दैट वाज द मेमोरी ही हैड। और उनके साथ उस आश्रम में और भी बड़े स्टूडेंट थे, पर वो उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए। व्हाट आई मीन टू से इज कि आप भी, अगर आप में से कोई भी जो मैं मेथड बताऊंगा उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये नहीं होगा कि 1 घंटे के बाद आपकी ट्रेनिंग जो है, आप ट्रेनिंग के बाद आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। बट कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं जो उन्होंने प्रैक्टिस की, और वो आज भी याद किए जाते हैं अपनी शार्प मेमोरी के लिए। और इसीलिए उनका नाम विवेक, विवेक का मतलब इंटेलिजेंस, उसके नाम पे विवेकानंद उनका नाम पड़ा था। तो ये हमारे पास भी उतने ही न्यूरॉन्स हैं जितने उनके पास थे। ब्रेन में न्यूरॉन्स, जब हम कुछ याद करते हैं तो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, इनका आपस में कनेक्शन बन के फिगर्स बनती हैं, और वो फिगर्स हमारे ब्रेन में स्टोर होती है। वो अगर हम उसको ऑर्गेनाइज कर लें, जैसे मैंने आपको कहा कि आप में से कोई भी पुअर या एवरेज मेमोरी के साथ, नोबडी इज बॉर्न विद दैट मेमोरी।
वी ऑल आर बॉर्न विद वेरी गुड मेमोरी. यू विल नॉट एग्री विद मी, आई नो दैट, क्योंकि एक ऐसी चीज बोल रहा हूं जिसके ऊपर आपको विश्वास करना है, क्योंकि आज तक पता ही नहीं था आपको. बट ओनली थिंग इज कि आपका कुछ लोगों का ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड होता है, या उसको कह लो ट्रेंड होता है, और कुछ अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं. सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है. वी नीड टू ऑर्गेनाइज दैट. लाइक you go to a library. Inside that library there are thousands of books. In my library, in my college library, there are lakhs of books, very huge library, right? And the books are organized in various sections: science, commerce, arts, engineering, everything, further subsections, and so many shelves are there, and there is a catalog outside. You go and search over there the name of the author or the name of the book, and then you easily find out where that book, out of lakhs of books, you are easily able to find out. The same thing is there. Whatever you learn, whatever not learn, I will say, whatever you register in your mind, that is stored inside it. But when the paper comes, you are trying to recall it, because that data is not organized, so you are not able to recollect the data, and then you say मुझे याद नहीं होता. आप केबीसी पे रोज देखते होंगे, लोग बैठे हैं कहते हैं हाँ जी पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा. ये याद का मतलब क्या है? वी हैव टू लर्न टू ऑर्गेनाइज डेटा इन आवर ब्रेन, जस्ट लाइक लाइब्रेरी. आपके पास एक बड़ी खूबसूरत अलमीरा है, उस अलमीरा में काफी सारे आपके कपड़े, ड्रेसेस पड़ी हुई हैं, पर अगर आप उसको ढेर लगाते जाओगे वहां पे, तो जब आप सर्च करने की कोशिश करोगे तो आपको पता है कपड़ा तो वहीं पे है, पर वो मिल नहीं रहा. क्यों? क्योंकि हमने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ. इट इज स्कैटर्ड, इट इज रैंडमली प्लेस्ड. तो हमारे ब्रेन में भी हम जो भी याद करते हैं उसको हम रैंडमली प्लेस कर देते हैं, उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते. तो टुडे आई विल बी गाइडिंग यू, जितनी बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर सका, आपको जितनी इंफॉर्मेशन दे सका एक आध घंटे में, आई विल ट्राई टू डू दैट. अदरवाइज पूरी तरह से ये ट्रेनिंग को मैंने एक बहुत से लोगों के, जैसे मैं इंस्टीट्यूट्स में जाता था, इंस्टीट्यूट्स ने बुलाना शुरू किया, ट्रेनिंग्स करानी शुरू की मैंने, फिर टॉक्स होने लग गई, सब कुछ चलना शुरू हो गया. कॉर्पोरेट्स ने बुलाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े स्पीकर्स की ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अपने साथ टाई अप कर लिया कि हम कॉर्पोरेट के साथ इस चीज को आगे प्रमोट करना चाहते हैं. तो बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आते थे कि सर हम बड़ी दूर बैठे हैं, हम कैसे, कोई महाराष्ट्र से कर रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से, हम कैसे सीखेंगे? तो फिर मैंने अपनी 3 साल की मेहनत को एक कैप्सूल फॉर्म में 6 घंटे की ट्रेनिंग में तब्दील किया, जिसको मैं संडे को करवाने लगा. तो उसी का कुछ पार्ट मैं आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश करूंगा कि आपको जितना मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ, जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है, वो आप सीख के और अपनी मेमोरी को बेहतर कर सको और अपनी परसेंटेज को बढ़ा सको. एक बात और है कि अगर यहाँ पे आप 200 स्टूडेंट्स और यहाँ पे होंगे, तो सारे के सारे जो मैं बोलूंगा उसको एक तो आप अप्लाई नहीं करोगे. यहाँ पे एक स्पीकर की इंट्रोडक्शन क्यों दी जाती है? कि ताकि पता चले कि इस पर्सन ने ये मेमोरी के फील्ड में ये काम किया हुआ है जो बड़ा मुश्किल काम था, ताकि आपका एक विश्वास बने कि वो शख्स सिखाने जा रहा है जिसने प्रैक्टिकली ये काम किया हुआ है. दैट्स व्हाई इंट्रोडक्शन इज गिवन, राइट? तो मैं आपको बताया कि मैंने क्या किया हुआ है. उनमें से एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको. पीरियोडिक टेबल सबको पता, पीरियोडिक टेबल का मास नंबर आज तक दुनिया में किसी ने याद नहीं किया था, मतलब रिकॉर्डेड नहीं है कहीं भी. हो सकता है किसी ने किया हो, बट नेट पे या किसी वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में कहीं रिकॉर्डेड नहीं था. तो दैट मेड माय नेम टू बी रजिस्टर्ड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. 2018 की बुक में फर्स्ट पेज पे मेरे 2 रिकॉर्ड हैं, 400 पेज की बुक. आई गॉट एक्साइटेड विद दैट. तो जैसे हाइड्रोजन का मास नंबर 1.00794, हीलियम 4.002602, लिथियम 6.941, बेरिलियम 9.012182, बोरोन 10.811, कार्बन 12.0107, नाइट्रोजन 14.00667, ऑक्सीजन 15.994, फ्लोरीन 18.998403 एंड सो ऑन. 118 एलिमेंट्स का मैंने जहां तक फाइनली मेजर्ड डिजिट था वहां तक याद किया. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? I memorized 1300 phone numbers. Why I am telling you this? Because I want that you trust me and trust your brain, that you have got a very very good memory. आपके ब्रेन की कैपेसिटी इतनी है कि अगर मैं इसमें एक इसको हार्ड ड्राइव मान लूं और इसमें एक HD क्वालिटी वीडियो स्टोर करना हो, तो वो वीडियो आपकी ऑर्डिनरी मूवी 2-2.5 घंटे की होती है, वो वीडियो जो स्टोर होगा आपकी हार्ड ड्राइव में, वो 300 साल कंटिन्यूअसली चलेगा. इस ब्रेन मेमोरी से आप 12 डिफरेंट ग्रेजुएशन डिग्रीज कर सकते हैं.
आप 36 डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, आप पूरा का पूरा एनसाइक्लोपीडिया याद कर सकते हैं। देयर आर पीपल जिन्होंने पूरी की पूरी डिक्शनरीज, ऑक्सफोर्ड, डिफरेंट तरह की डिक्शनरीज याद की हुई हैं। तो ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं, वेरी वेरी इजी। पर उसके लिए हमें समझना होगा ब्रेन की वर्किंग को। तो ब्रेन की वर्किंग क्या है हमारी, कि आप एक आमतौर पे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम, मेरा बच्चा पढ़ता तो बहुत है, आप भी कहते हैं मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, नंबर नहीं आते। दैट इज वेरी कॉमन कंप्लेंट। पढ़ता बहुत हूँ, नंबर नहीं आते। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन है कि आप जब पढ़ रहे हैं, हमारा ब्रेन 3 स्टेप्स में वर्क करता है। नंबर वन इज रजिस्टर, नंबर 2 रिव्यू, एंड नंबर 3 इज रिकॉल। अगर ये 2 स्टेप्स ठीक हो गए, रजिस्टर एंड रिव्यू, तो तीसरा रिकॉल 100% होगा ही होगा। तो ये 100% रिकॉल का जब मेरा कॉन्फिडेंस बना था, तो मैंने कौन बनेगा करोड़पति को चैलेंज किया था। आज भी मेरे वीडियोस हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम सबको पता है, कुंवर राजीव। केबीसी को चैलेंज करने वाले मेमोरी ट्रेनर कहते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि मैं जितनी मर्जी अनलिमिटेड जनरल नॉलेज याद कर सकता हूं, और उससे मैं केबीसी में आसानी से चैलेंज किया था कि या तो मैं मैक्सिमम अमाउंट लेके जाऊंगा, वट एवर इट इज 7 करोड़ है, या फिर 0 अमाउंट। बीच में क्विटिंग कुछ नहीं होगी। अगर एक भी सवाल का जवाब ना दे पाया तो मैं इसको डोनेट कर दूंगा या छोड़ जाऊंगा। आई विल नॉट टेक दैट मनी, 100% गारंटी के साथ। तो ये विश्वास कैसे पैदा होता है? जब आपको पता चलता है कि आपके पास एक तो सुपर कंप्यूटर है, और दूसरा आपको उसकी वर्किंग भी पता चल गई। अब रजिस्टर क्या है? आपने किताब खोली, पढ़ना शुरू किया, किताब सामने खुली हुई है, आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, वो वाले नहीं जो मम्मी पापा अंदर आए तो मोबाइल को बंद कर दिया, किताब खोल ली, किताब के अंदर ही मोबाइल रख के बैठे हुए हैं। वो शरारती, उनकी बात नहीं मैं कर रहा। दे आर नॉट सिंसियर, वो उनकी भी कोई कसूर नहीं होता। दे कैन ऑल्सो राइज इन देयर लाइफ। आई टेल यू, कुछ साल पहले तक मैं इस बात को नहीं मानता था। जो बच्चे मेरी क्लास में नहीं पढ़ते थे उनको मैं मतलब बहुत एक बुरा इंसान समझता था। पर अभी मुझे माइंड ट्रेनिंग के बाद पता चला कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी प्रोग्रामिंग गलत है। तो जब वो कहते हैं कि इंसान से नफरत ना करो, उसकी आदतों, तो वो चीजें आप समझ आ रही हैं कि उसकी प्रोग्रामिंग गलत है। अगर कोई उसके साथ बैठ के उसकी प्रोग्रामिंग को करेक्ट करने की कोशिश करे, तो वो आदमी भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बहुत बड़ी सक्सेस जिंदगी में ले सकता है। तो जब हमारा मन डिस्ट्रैक्टेड है, अब डिस्ट्रैक्शन क्या है? ये माइंड की ट्रेनिंग के साथ भी और मेमोरी की ट्रेनिंग के साथ भी कहा जाता है कि आपके मन में एक दिन में 70,000 से 90,000 थॉट्स चलती हैं। 70,000 से 90,000। और आप कैलकुलेट करो एक दिन में सेकंड्स कितने हैं? 86,400 सेकंड्स हैं। तो इसका मतलब हर एक सेकंड में अप्रोक्सीमेटली आपके मन में सोच बदलती जा रही है। और जब आप पढ़ने बैठे हैं, तो टॉपर और एक फेल्योर में फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो डिस्ट्रैक्शन, जो फेल्योर है वो डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस करता है, और जो टॉपर है वो कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस करता है। अगर एक फेल्योर स्टूडेंट अगर कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे ये 70,000 से 90,000 जो थॉट्स हैं, ये जनरेट कहां से होती हैं? ये भी मैं आपको बता दूं, आपके बचपन के प्रोग्राम से होती हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की एक बुक है, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। वो कहते हैं कि जब आप पैदा हुए तो पहले 7 साल में आप जिस घर में पैदा हुए, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया, आपके स्कूल में गए, आपके टीचर्स ने आपको क्या सिखाया, आप घर में कल्चर कैसा था, वहां पे क्या क्या सिखाया जाता था, आपके आसपास रिलेटिव थे, जो आपके रिलीजन था, उस सब से आप सीखे। और पहले 7 साल आपकी डाउनलोडिंग स्टेज होती है, और वो एक प्रोग्राम डेवलप हो जाता है। आज जो आपकी जिंदगी है, वो 95% वो वाला प्रोग्राम कंट्रोल कर रहा है जो बचपन के पहले 7 साल में बन गया। इसीलिए अगर कोई एवरेज घर में पैदा होगा तो 95% चांसेस है कि वो एवरेज रहेगा, 5% चांसेस है कि वो राइज कर जाएगा। तो ये जो 70,000 90,000 थॉट्स हैं, इनमें से 90% थॉट्स यूजलेस हैं, जो रोज आती रहेंगी और कितने सालों से आ रही हैं। अब इसी को मन जीते जग जीत इसी को कहते हैं, कि आपको अपनी थॉट पे काबू करना सीखना है, और थॉट में आपके माइंड में वो थॉट्स चलें जो आप चाहते हो, वो ना चलें जो ये प्रोग्राम चाहता है। चेंजिंग योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड माइंड ट्रेनिंग, एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल हु हैव अ ड्रीम, and it is very very difficult for those who do not have any dream, goal or target in life. वो कभी भी जितना मर्जी अप्लाई करें वो नहीं कर पाएंगे।
थोड़ी देर चलेंगे इस रास्ते पे, फिर दोबारा अपने कंफर्ट जोन में वापस चले जाएंगे। बहुत से लोग अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं पर फिर दोबारा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई पैशनेट ड्रीम नहीं होता। ड्रीम आपको ड्राइव करता है। तो ये कंसंट्रेशन आपकी मेमोरी को भी अफेक्ट करती है। आपने किताब खोली हुई है, मन दौड़ रहा है इधर उधर, 70,000 से 90,000 थॉट्स के बीच में दौड़ रहा है। अब ये जब मन टिक ही नहीं रहा तो हमारे ब्रेन में रजिस्टर ही नहीं हो रहा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो रजिस्टर ही नहीं हुआ, तो पहला ही स्टेप गलत हो गया। वी आर नॉट रजिस्टरिंग इट। तो ये प्रैक्टिस से होगा। अगर आप सीरियस हैं तो आप जब भी पढ़ने बैठे अपने मन में एक इंस्ट्रक्शन दें कि अगले 5 मिनट तक मैं कोई भी फालतू थॉट नहीं आने दूंगा और किताब पे फोकस करूंगा। 2 मिनट ही कीजिए, चाहे 10 सेकंड ही कीजिए, 20 सेकंड कीजिए, पर उसको प्रैक्टिस करते जाइए और ये बढ़ता जाएगा। हो सकता है शुरू में एक एवरेज आदमी एक थॉट के ऊपर 14 सेकंड से 17 सेकंड तक नहीं टिक पाता। अगर आप 17 सेकंड तक होल्ड करेंगे वहां पे अपनी किताब पे, इट मींस यू आर बेटर देन मेनी। और इसको बढ़ाते जाइए 17 से हाफ अ मिनट, 1 मिनट। एंड अगर कोई ऐसा का टाइम नहीं बढ़ रहा, नेवर फील गिल्टी, लव योरसेल्फ। आई टेल यू, नेवर फील गिल्टी। तो मेरा तो यार ध्यान टिक ही नहीं रहा, बिल्कुल इतनी कोशिश किया हो ही नहीं रहा। नेवर फील गिल्टी, रिलैक्स, स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। अब आप पूछोगे कितनी देर ये करना होगा? जब आप फर्स्ट टाइम चलना सीखे थे कितनी बार गिरे थे? तो क्या तब आपने डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद मैं नहीं चलूंगा क्योंकि इतनी बार गिर गया, चोट लगी, अब तो नहीं मैं चलूंगा? आप चले, आपके पेरेंट्स ने आपको चलाया। फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर सीखा तो बड़ा मुश्किल लगा था, साइकिल जब सीखा था तो बड़ा मुश्किल लगा था। तो प्रैक्टिस ऑफ राइट थिंग, नॉट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इसके लिए ध्यान, ध्यान वर्ड हर रिलीजन में बहुत प्रोमिनेंट है। जिस भी पर्सन के नाम पे धर्म की स्थापना हुई वो इंसान ने क्या किया था? जिस मर्जी धर्म में ले, बुद्धा, जैन, नानक, जिसको मर्जी, वो सब के सब उन्होंने ध्यान लगाया था। तो हम लोग क्या करते हैं? हम उनकी पूजा करके समझते हैं अभी हो गया, इतना नहीं है। वॉट एवर गुरु ने किया उसको करना है, सिर्फ उनकी पूजा नहीं करनी हमने, सिर्फ उनको नमन नहीं करना। वो उन्होंने ये कहा कि जो मैंने किया वो आप करो और मेरे रास्ते पे चलो जहां मैं पहुंचा, और रास्ते कोई भी हो सकता है। तो वो क्या है? ध्यान। ध्यान क्या है? मेडिटेशन। और मेडिटेशन आज के बच्चों को बताया जाएगा, कहते मेरी अभी उम्र नहीं है, जब उम्र आएगी तब करूंगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये गलती हमने की। अगर आप इसको यंग एज में सीख लिया तो ये सिर्फ आपको रिलीजन के साथ तो जो जो फायदा होगा, बट आप एक खूबसूरत जिंदगी के मालिक हो सकते हैं। खूबसूरत मतलब रोजी रोटी वाली, अच्छे पैकेज वाली जिंदगी तो आपको स्कूल कॉलेजेस सिखा देंगे, बट क्या एक अच्छे पैकेज जो ले रहे हैं लोग, क्या उनकी लाइफ बैलेंस्ड है? व्हाट आई टॉक इज कंप्लीट बैलेंस्ड लाइफ। और उसमें क्या क्या होना चाहिए? लव, पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, दुनिया भर की लग्जरीज हो, सैरें हो, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, दुनिया आपको जाने, और आपके पास बहुत अच्छी हेल्थ हो और आप पूरी दुनिया में चैरिटी करो और लोगों की हेल्प करो। दिस इज कंप्लीट लाइफ जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये सिर्फ पैकेज से नहीं होगी, ये आपके माइंड पावर से आपको मिल सकती है। अपनी सोच को काबू कीजिए। ये आपका प्लेग्राउंड है, यहाँ पे और कोई खेल नहीं सकता। जो सोच लाएंगे आप ही लाएंगे। तो व्हाई नॉट टू ब्रिंग पॉजिटिव थॉट्स? उसके लिए मैं यही कहता हूं, ज्यादा टाइम पॉजिटिव जोन में बिताइए, यू विल हैव अ वंडरफुल फ्यूचर। और ज्यादा टाइम पॉजिटिव जोन में कैसे बिताया जा सकता है? अच्छी किताबें पढ़िए, चाहे 10 मिनट ही पढ़िए, और नॉवल की तरह ना पढ़िए, जो भी पढ़ा है उसको जिंदगी में उतारिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 200-400 किताबें पढ़ी हुई हैं, ना उनके पास हेल्थ है ना उनके पास वेल्थ है, वो बड़े अच्छे लोग हैं बस। तो एक बैलेंस्ड लाइफ बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स को रखने के लिए मैं किताबें अच्छी पढ़ता हूं, मैं अच्छे वीडियोस देखता हूं, मैं ड्राइव करता हूं तो मेरा मन मेरे ड्रीम पे रहता है, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस रहना सीखा, जो कि 4-5 साल पहले बिल्कुल मुझे इन चीजों पे पता ही नहीं था। बिकॉज आई हैड अ ड्रीम, आई सर्च्ड फॉर इट, नेचर गेव मी दिस पाथ। उस बुक के थ्रू मुझे पता चला हमारी मेमोरी अच्छी है, मैंने क्या कुछ किया, और आज की डेट में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ, इन सब में नाम दर्ज होता चला गया। तो सबसे पहली चीज जो बता रहा हूं, रजिस्टर कैसे करना, उसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको। अक्सर हम जब घर से बाहर जाने लगते हैं, लॉक करने लगते हैं, तो हमें बाहर देखते हैं कि लॉक कर दिया, फिर गैस स्विच ऑफ, गैस को ऑफ कर दिया, लाइट स्विच ऑफ कर दी, आधा रास्ता चला जाते हैं तो रास्ते में याद आता क्या मैंने गेट लॉक किया था, दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हो रहा। क्या मैंने वो किया था, लाइट्स ऑफ की थी, मैंने अपने स्पेक्स कहाँ रखे थे, मैंने अपने वो कीज कहाँ रखी थी। अक्सर ये हम भूलते हैं और उसमें काफी टाइम वेस्ट होता है और इरिटेशन भी होती है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बुक में से कोट ले रहा हूं, दैट बुक इज द पावर ऑफ नाउ।
आप सिर्फ गूगल पे लिखेंगे द पावर ऑफ नाउ, आपको अपने आप उनका ऑथर का नाम भी पता चल जाएगा। एखत टॉली उनका नाम है। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा, मैं किताब का नाम बता रहा हूं, द पावर ऑफ नाउ। नाउ मीन्स प्रेजेंट, बी इन द प्रेजेंट। आप आज के बाद इस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, भूलने की बीमारी से बचना चाहते हैं, आप या आपके पेरेंट्स या आपके मेंबर्स, तो उनको एक चीज सिर्फ बताइए, जब आपने लॉक कर रहे हैं ना अपने घर को, तो 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड फॉर्मूला याद रखिए। लॉक करते वक्त 2 सेकंड उसकी तरफ देखना है आपने। आप कहीं घर बाहर से आए हैं, अपनी कीज रखी, 2 सेकंड के लिए उसको देखिए। आपने लाइट स्विच ऑफ की, 2 सेकंड के लिए देखिए। आप वेदर चेंज होगा, आप अपने क्लोथ्स वगैरह जो हैं समर के, उनको पैक करोगे, विंटर के निकालोगे, और 6 महीने बाद जब दोबारा खोलोगे तो याद नहीं आएगा वो मैंने जैकेट कहाँ रखी थी, वो कहाँ रखा था। तो आपको क्या करना है, जब आप उस काम को कर रहे होगे, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें जहां भी प्लेस कर रहे हो, 2 सेकंड के लिए उसकी तरफ देखिए। आप अगर ये 2 सेकंड फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे ना, तो आप क्या होगा, आपका ब्रेन उस इवेंट को रजिस्टर कर लेगा। और हमें याद क्यों नहीं आता था पहले, क्योंकि जब हम लॉक लगा रहे थे सोच कहीं और होती थी, तो मन में वो रजिस्टर नहीं होता। ये 1 एट ए टाइम रजिस्टर करता है, ये इसकी पॉलिसी है, 1 एट ए टाइम रजिस्टर करेगा। आप लॉक कर रहे हो यहां पे और सोच आपकी कहीं और है, तो ये रजिस्टर नहीं करेगा। तो 2 सेकंड फॉर्मूला, वो जो लोग कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं रहता, ये 99% लोगों की इस बीमारी को दूर कर सकता है और सब कुछ आपको याद रहेगा। और दूसरी चीज बड़ी पावरफुल है, आपको शायद पता, अगर आप किसी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो मैंने तो बहुत पढ़ी, क्योंकि मैं अपने ड्रीम को हासिल करना चाहता था। मुझे नहीं पता था किसने ये ड्रीम पूरा किया, किसने नहीं किया। तो वो क्या करते थे, वन थिंग, कि आपको अपने शब्दों पे काबू करना है। ये चीज बड़ी पावरफुल है। हम बोलते हैं मेरी तो सेहत ठीक ही नहीं रहती, मेरी तो बैक में दर्द होती रहती है, मैं जो भी पढ़ता हूं मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मेरी तो मेमोरी बिल्कुल वीक है, मेरे तो आज तक नंबर ही नहीं आए कभी। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस वी स्पीक विद पैशन। अगर आपको मेमोरी अच्छी चाहिए, आपको नंबर अच्छे चाहिए, तो एक चीज बोलना शुरू कीजिए कि आई हैव गॉट अ वेरी गुड मेमोरी। मेरी, और ये नहीं कि बच्चों जैसे छोटा बच्चा एक पोएट्री सिखा दी जाती, बोल जाता है, उसको मतलब भी नहीं पता होता, वैसे नहीं, एक फिल्म एक्टर की तरह। एंड प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन यू गेट रेडी। आजकल तो यू डोंट गेट रेडी बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, बट जब हम मॉर्निंग में तैयार होते हैं ना, हम खुद को बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, है ना, बार बार मिरर के आगे से गुजरते हैं, बॉयज हो गर्ल्स हो सब। वो टाइम होता है व्हेन यू आर लुकिंग गुड। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, look into your own eyes and say, I am the best creation of God. I've got a very good memory. अगर आपको हेल्थ इश्यू है, मेरी सेहत दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, my health is improving daily. किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, my finances are improving daily, my monthly income is increasing daily. मैं जो भी याद करता हूं मुझे 1 मिनट में याद हो जाता है। Put some emotion in it. Emotions are the power behind the words. और जो भी आप जिंदगी में इमोशनली बोलते हो, वो आपकी जिंदगी में अपीयर होता है। वेरी पावरफुल, आई टेल यू। और अगर आप वैसे आप अपने ऊपर एक अंकुश लगाएं, अपने ऊपर एक चेक लगाएं कि मैं क्या बोलता हूं सारा दिन में, या क्या बोलती हूं। कोई ऐसे सेंटेंसेस में गलती से बोल तो नहीं रही, आपकी प्रोग्रामिंग के थ्रू आ गए हैं वो सेंटेंसेस, और आप खुद ही अपना नुकसान कर ही जा रहे हैं। तो इन ए वे आई विल से यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपनी मेमोरी को खुद ही इंप्रूव कर सकते हैं। 20 से 25% मेमोरी पे फर्क पड़ जाएगा। पहले दिन आप बोलोगे आई हैव गॉट ए वेरी गुड मेमोरी, मैं जो भी याद करता हूं मुझे याद हो जाता है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरी कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंप्रूव हो रहा है। शुरू में ऐसे सेंटेंस बोलिए जिनको विश्वास किया जाए। कभी ये नहीं बोलना कि मेरी मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी, बस अगले हफ्ते तक इंप्रूव हो जाएगी। ये अगले हफ्ते नहीं समझता हमारा माइंड, ये प्रेजेंट में ही बोली हुई चीज को समझेगा। और होगा क्या, ये बार बार जब आप बोलेंगे, आपके सबकॉन्शियस में ये प्रोग्रामिंग में एक बिलीफ बनना शुरू हो जाएगा। शुरू में तो आप खुद ही हंसोगे, और 2-4 तो ऐसे होंगे जो पहले दिन ही ना इसको बोल के छोड़ देंगे कि सर पता नहीं क्या फालतू बोलते चले गए, इससे क्या होगा। इससे भी कभी कुछ हुआ है? ऐसे बोलने से होता तो सारी दुनिया बदल जाती। स्टूडेंट, सारी दुनिया बदल सकती है। मैं तो कहता हूं 700 के 700 करोड़ लोग इस दुनिया में एक बढ़िया जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। दे आर बॉर्न विद कंप्लीट पैकेज।
बट प्रोग्रामिंग जो शुरू की प्रोग्रामिंग है, जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड की हुई है, वो अपना असर दिखा रही है। अगर आप ये बात समझ लें कि मुझे वो सॉफ्टवेयर को चेंज करना है, तो इट इज वेरी इजी टू चेंज योर लाइफ। सॉफ्टवेयर कैसे चेंज होती है? दो मेथड, एक है कोई हिप्नोसिस से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई जिप तो लगी नहीं हुई, इसको खोला और ऊपर से प्रोग्रामिंग चेंज कर दी, कोई जिप नहीं है, तो हम इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, कोई ऐसा बटन भी नहीं दिया नेचर ने। तो डाइल्यूट कर सकते हैं, और डाइल्यूट करने का मतलब है वो सारी जो चीजें नेगेटिव हैं वो रिमूव कर देंगे हम, और फिर पॉजिटिविटी ज्यादा डाल देंगे। तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी कोई रोक ही नहीं सकता आपको, अगर आप ये बात समझ जाएंगे। तो ऑलवेज से माई मेमोरी इज वेरी गुड, बोल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी शर्म आएगी शुरू में, थोड़ी हंसी भी आएगी, आने दो। व्हाट आई स्पीक डेली, आई टेल यू, मेरी हेल्थ बहुत ही बढ़िया है। आई एम सो ग्रेटफुल, माई हेल्थ इज वेरी गुड। I am the best creation of God. I've got wonderful memory. My finances are daily, they are rising like anything. I expect miracles, and miracles happen in my life daily. Those miracles happen if you expect them. Make this your habit. ये हैबिट बना लो कि अगले पल आपको, मुझे कोई ना कोई कॉल आ जाती है, कहीं ना कहीं फोन आ जाता है, मिरेकल्स डेली मेरी लाइफ में होते हैं, बिकॉज आई एक्सपेक्ट देम, आई बिलीव इन देम। और अगर आप कहते हैं कि मिरेकल्स वगैरह कुछ नहीं होते, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके लिए वो नहीं होंगे। तो जितने दुनिया के लोग हैं ना, उतने ही दुनिया में बिलीव्स हैं, और उन सब वो सब के सब ठीक है अपनी जगह पे। जो बिलीफ उन्होंने पाला हुआ है वही उनकी जिंदगी बन रहा है, तो वो गलत कैसे हो, वो ठीक है। तो आप अपने प्रोग्रामिंग में बिलीफ चेंज कीजिए कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। आपको टीचर पढ़ाते हैं, मुझे तो जिंदगी में बहुत बढ़िया टीचर मिले जिन्होंने पढ़ाया, पर कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि याद कैसे करना। पढ़ाते बहुत अच्छा था, मजा आ जाता था पढ़ के, बट याद करना नहीं सिखाते थे। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, मैं आपको एक साथ में इंस्ट्रक्शन देता हूं, याद ना कीजिएगा स्टोरी को, ओके? डोंट ट्राई टू मेमोराइज द स्टोरी, सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए बस स्टोरी को। वो स्टोरी क्या है कि बड़ी फनी सी स्टोरी है कि आप अपने रूम से बाहर निकले, रूम से आप बाहर निकले, अपने रूम में इमेजिन कीजिएगा, जो भी मैं बोलूं उसको इमेजेस देखने, आपने सिर्फ सुनना नहीं है। ट्राई टू, क्योंकि देखिए मैं अगर आपको अभी कहूं कि आपने अभी सिर्फ मेरे को सुनना है, व्हाइट एलिफेंट के बारे में किसी ने नहीं सोचना, ओके? आपने सिर्फ मुझे सुनना। अब हो क्या रहा, आप मेरे को सुनना छोड़ के सब व्हाइट एलिफेंट का इमेज देख रहे हो आप। योर माइंड वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस और मूवीज और स्टोरीज, ये उनको समझता है। इसके लिए वर्ड्स और नंबर्स कुछ ज्यादा मैटर नहीं करते, ये इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। तो आपने व्हाइट एलिफेंट देखना शुरू कर दिया था ना, तो व्हाइट एलिफेंट पूरी उसका ट्रंक भी नजर आ रही थी, 4 legs, ह्यूज बॉडी, व्हाइट कलर में नजर आनी शुरू हो गई। तो जब भी आप कुछ सोचते हो तो वो इमेजेस की फॉर्म में चलता है। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, वो स्टोरी को याद नहीं करना, सिर्फ सुनना है और इमेजेस क्रिएट करने की कोशिश करनी है। आप अपने रूम से बाहर निकले, और रूम से बाहर निकलते ही आपने देखा वहां पे एक स्कैनिंग मशीन लगी हुई है। वो स्कैनिंग मशीन जो लगी होती है एयरपोर्ट्स पे और रेलवे स्टेशन पे, आपने देखी लगी होती है ना, जिसमें से लगेज पास करते हैं, और फिर एक एक्सरे की मशीन, एक पुलिसमैन भी बैठा होता है ताकि कोई इलीगल चीज पास ना करे, दैट सॉर्ट ऑफ स्कैनिंग मशीन। आप कोई हॉस्पिटल में गए हैं, वहां की स्कैनिंग मशीन इमेजिन कर लीजिए। अब आपने स्कैनिंग मशीन देखी वहां पे, आप उसको देख भी पा रहे हैं कैसी है, उसके रोलर्स घूम रहे हैं, उसकी आवाज भी आ रही है, प्लास्टिक का बना हुआ स्मेल भी आ रही है। तो ऑलमोस्ट सारी सेंसेस आपने इन्वॉल्व कर लिया, आपने टच भी करके देख लिया कि वो प्लास्टिक की बनी हुई। आपने अपने हाथ में एक टाइटन की घड़ी पहनी हुई थी, आपने वो घड़ी उतारी और वो घड़ी आपने कहाँ रख दी, उसकी उसकी स्कैनिंग मशीन में रख दी, वो उसमें से पास होके निकल गई। आपने दूसरी साइड से वो अपनी वॉच उठाई टाइटन की और बाहर घर के चले गए। वहां पे एक वैन खड़ी थी, आपने वैन खुली हुई थी, आप उसके अंदर चले गए। आप अंदर से देख के हैरान हो गए, वो वैन बहुत ही सुंदर थी, जैसे क्रोम प्लेटेड व्हाइट, शाइनिंग व्हाइट क्रोम प्लेटेड थी। तो आप उसमें बैठ गए, आपने देखा वहां पे एक मैंगो पड़ा हुआ था, आप उसको उठाने लगे, जो ही टच किया तो आपको पता चला ये तो आयरन का बना हुआ है। आपने वो मैंगो वहीं पे रख दिया, और जो ही आपने मैंगो रखा, मैंगो की खुशबू भी आनी चाहिए, उसकी खुशबू आ रही है, और उसका कलर खूबसूरत सा बड़ा सा मैंगो, सब इमेज बनाते जाइए। आपने जो ही वो मैंगो को रखा के देखा कि वो आयरन का है, तो उसमें से कोबरा बाहर निकल आया। अब ब्लैक कोबरा इमेजिन कर लीजिए, वो बाहर आ गया। आपको क्या होगा, आप डर गए, आप डर गए, आप साइड पे हट गए, कोबरा बाहर निकल गया। जब आप साइड पे हटे तो कोबरा बाहर निकल गया। सामने एक कॉप खड़ा हुआ था, कॉप इज अ पुलिसमैन।
तो उस कॉप ने उस कोबरा को उठाया और उस सिंक, एक सिंक था, उस सिंक के होल में डाल दिया। अब दिस स्टोरी, ये क्या सर आपने क्या स्टोरी सुना दी, ये कोई सिर पैर ही नहीं था। इसका सिर पैर नहीं था, इसीलिए आपको याद हो गई। मैंने आपको कहा था याद नहीं करनी, पर आपको याद हो गई सबको। क्यों याद हो गई? क्योंकि इसमें आप ढूंढते रहे कि कुछ मतलब की चीज आएगी, वो आई नहीं, और एक फनी फनी से इमेजेस बनाते रह गए। और टीचर कहते हैं पढ़ाने के बाद याद करो, वो याद नहीं होता। तो अब आपको एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं, आप देखिए क्या आपको याद हो गया। आप बाहर निकले तो सबसे पहले क्या था? स्कैनिंग मशीन थी। आपने क्या रखा था उसमें, अपने हाथ से उतार के, याद आ गया? टाइटन की घड़ी। वो उठा के आप बाहर गए, किसमें बैठे थे? वैन। वैन अंदर से क्रोम प्लेटेड वाइट, शाइनिंग वाइट थी। आप उसमें बैठे, सेंटर में क्या पड़ा था? एक मैंगो पड़ा था। मैंगो को टच किया तो वो नेचुरल नहीं था, वो आयरन का बना था। आपने जो ही उसको रखा, उसमें से एक कोबरा निकल आया। कोबरा निकला, आप डर गए, साइड पे हटे, वो बाहर निकल गया। सामने एक कॉप खड़ा था और उसने उसको किस में डाला? सिंक में डाल दिया। तो ये स्टोरी क्यों याद हो गई? क्योंकि ये एक फनी थी, एक इंटरेस्टिंग चीज थी। तो आपको पता भी नहीं चला कि आपने पीरियोडिक टेबल की 10 एलिमेंट्स याद कर ली। 21 से 30 तक आप सबको एलिमेंट्स याद हो गई हैं। आप गूगल सर्च कीजिएगा और उन एलिमेंट्स को याद कर लीजिएगा, फिर मेरी स्टोरी को रिवाइज कीजिएगा, तो आपको एक मेथड पता चलेगा कि आज शाम तक आप सारे के सारे स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। वो क्या एलिमेंट थी? पहले आप बाहर निकले, स्कैनिंग मशीन थी। 21 इज स्कैंडियम। स्कैंडियम को मैंने एक इमेज में तब्दील करने के लिए मैंने उसकी स्कैनिंग मशीन रख ली, उसका इमेज बना दिया। अब मेरे ब्रेन को स्कैंडियम पढ़ने के बाद याद हो जाएगा, पर मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करूंगा तो मुझे याद नहीं आएगा। तो मैंने एक हिंट, अपने ब्रेन को एक हिंट दिया इस स्टोरी के जरिए कि स्कैनिंग मशीन तो इसको नहीं भूलेगी, स्कैंडियम भूल जाएगा। तो ये स्टोरी के जरिए आप पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे याद कर सकते हैं, आपको बता रहा हूं मैं। आपने टाइटन की घड़ी उतारी, 22 वाज टाइटेनियम। आप बाहर निकल गए, वैन में बैठे, 23 इज वेनेडियम। आप वहां से उसको देखा, क्रोम प्लेटेड थी, तो 24 इज क्रोमियम। सेंटर में पड़ा था मैंगो, 25 इज मैग्नीज, वो आयरन का बना हुआ था, 26 इज आयरन। आपने उसको रखा तो उसमें से निकला कोबरा, 27 इज कोबाल्ट। आप साइड पे हट गए, कोबरा बाहर निकल गया, 28 इज निकल, बाहर निकल गया। सामने खड़ा था कॉप, तो 29 इज कॉपर, और उसने उसको सिंक में डाल दिया, तो 30 इज जिंक। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आप में से आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी होंगे, साइंस के स्टूडेंट्स भी होंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी होंगे। आप सबको 10 एलिमेंट्स याद हो गई विद इन 10 मिनट्स, लेस देन 10 मिनट्स। तो मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये टेक्निक सीखी खुद ही, तो मेरे को क्या एक्साइटमेंट थी कि मैंने कभी सुना ही नहीं था कोई इंसान। ये सुनते थे, हमारे एक टीचर होते थे, उनको पीरियोडिक टेबल आता था, पर मैं कभी मिला नहीं किसी इंसान से। तो मुझे लगा कि मुझे पीरियोडिक टेबल याद करना है, और विद इन 2 डेज मैंने वो पीरियोडिक टेबल, काम एक ही दिन का था, अगले दिन किया, क्योंकि और बहुत कुछ मैंने किया था इससे। तो what was the excitement? At the age of 50, I had a child like excitement कि मैं, मेरे शहर में शायद 15 लाख की आबादी में 10-15 लोग होंगे जिनको पीरियोडिक टेबल आता होगा, तो मैं पहले 10-15 में आ जाऊंगा। That was the only excitement. I memorized the periodic table. Students, I want to tell you, अपनी कभी भी क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को नहीं छोड़ना। कभी ये नहीं सोचना अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब हम 11th में हैं, 12th में हैं, वो जो नर्सरी के बच्चे हैं उनसे हम बहुत बड़े हैं, हमें बिहेव करना है। बिहेव करना इज ए सेपरेट थिंग, बट अपनी क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को हमेशा बरकरार रखिएगा, जब जब तक, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। तो ये पीरियोडिक टेबल, बड़े लोग कहते हैं कि सर पीरियोडिक टेबल याद करके क्या होगा। पीरियोडिक टेबल याद करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। यू हैव लर्नड द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेमोराइजेशन, कि इसके थ्रू आप क्या क्या याद कर सकते हैं। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूं इसको, तो आपके लिए थोड़ा इजी कर दूं। करना क्या होगा, गूगल सर्च पे जाइए, लिखिए पीरियोडिक टेबल, 118 एलिमेंट्स के नाम आ जाएंगे। अब हर एलिमेंट को इमेज में तब्दील करते जाइए। 31 पे है गैलियम, तो आप, मैंने उसको इमेजिन किया, उस कॉप की पिक्चर के बाद एक लंबी सी गली इमेजिन कर ली, गली से गैलियम हो गया। 32 पे जर्मेनियम है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक जर्मन बेकरी इमेजिन कर ली। 33 इज आर्सेनिक, उसके दोनों तरफ 4 सैनिक खड़े किए हुए हैं, 2 इधर 2 इधर, 4 सैनिक इज आर्सेनिक फॉर मी। 34 इज सेलेनियम, उसके बिल्कुल सामने एक सैलॉन है, सैलॉन से मुझे सेलेनियम याद आ गया। 35 इज ब्रोमीन, तो ब्रोमीन से मैंने ब्रूमिंग, अंदर ब्रूमिंग चल रही है उसके अंदर। 36 इज क्रिप्टॉन, आप किसी करप्ट आदमी को जानते हैं, जो शक्ल से ही करप्ट होते हैं कुछ लोग, ऐसा बंदा इमेजिन कर लिया, ही इज सिटिंग इन द सैलून ऑन द चेयर।
अब उसके हाथ में एक रूबी की रिंग है। अब रूबी का इमेज कैसे बनाएंगे? अगर तो आपने देखा है तो इट्स फाइन विद गर्ल्स, उनको पता होता है। नहीं पता तो गूगल इमेजेस पे जाइए, रूबी डालिए, मैंने उसका बहुत इस्तेमाल किया। रूबी का इमेज बन गया, वो उसके हाथ में रिंग है। उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मैन खड़ा कर दिया, स्ट्रॉन्ग मैन 38 इज स्ट्रॉन्शियम। उसके पीछे एक शेल्फ के ऊपर यॉट का मॉडल इमेजिन कर लिया, 39 इज यट्रियम। और उसके ऊपर एक जरकन का पत्थर मैंने इमेजिन किया, वो भी नहीं देखा था गूगल इमेजेस का, या फिर इमेजिनेशन का सहारा लो, कोई भी खूबसूरत शाइनिंग सा पत्थर इमेजिन किया, दैट इज जरकन फॉर मी, एंड दैट इज जिरकोनियम। 39 इज यट्रियम फॉर यॉट एंड 40 इज जिरकोनियम। एंड इन दिस वे इफ यू विल डू इट, आज की आज आप 118 एलिमेंट्स मेमोराइज कर सकते हो बड़ी इजीली। दिस इज वन मेथड। इससे आप क्या क्या कर सकते हो? देखिए, मैंने आपको एक 20 एलिमेंट्स की स्टोरी बताई, 20 एलिमेंट्स आपने याद कर ली। अब अगर आपको 20 पैराग्राफ का एक चैप्टर याद करना है, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके 20 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन पे वर्क करना बहुत जरूरी है, वो आप करेंगे। आप एक पैराग्राफ को याद करने की कोशिश ना कीजिए, सिर्फ 2-3 बार पढ़िए ध्यान से, बस। पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि उस पैराग्राफ में एक कीवर्ड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड द होल पैराग्राफ रिवॉल्व्स अराउंड इट। You will find that keyword. You will do same thing with 20 paragraphs. You will find out 20 keywords. Now, those keywords have to be converted into images and make a simple story of these 20 keywords. Your brain has memorized that paragraph, each paragraph. It needs only, इसको क्या चाहिए? इसको सिर्फ और सिर्फ एक हिंट चाहिए कि क्या था, जो कहते हैं ना मुझे याद नहीं आ रहा, वो हिंट, वो आपने इमेजेस की फॉर्म में 20 कीवर्ड्स की स्टोरी बना के याद कर लीजिए। बड़े बड़े आप देखें लीडर्स हैं जो एक्सटेम्परी स्पीच देते हैं, और उन्हीं को लाइक किया जाता है जो बिना पढ़े बोलते हैं। कई लोग आके पेपर रख के भी नहीं बोल पाते, तो हु आर द मोस्ट पॉपुलर? जो बिना पढ़े बोलते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपको एक स्पीच या प्रेजेंटेशन देनी है कहीं भी, उसके 10-15 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, तो व्हाट यू विल डू, 10-15 पॉइंट्स की एक स्टोरी बना लीजिए, और वो स्टोरी अपने स्टोरी को फीड करना बड़ा ईजी है। हमारा ब्रेन बहुत क्विकली उसको रिस्पॉन्ड करता है, और हमारा ब्रेन ऐसी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टोरीज को स्टोर कर सकता है, पर अगर आप उसको एक फोन नंबर याद रखने को कहोगे तो वो इसको इतना बढ़िया रिस्पॉन्ड नहीं करता। हाँ, ये फ्लेक्सिबल है, तो इट इज नॉट मेड फॉर वर्ड्स एंड नंबर्स, इट इज मेड फॉर इमेजेस, स्टोरीज, इंटरेस्टिंग, राइट? इंटरेस्टिंग हो, वियर्ड हो, बहुत छोटी चीजें हो, बहुत बड़ी चीजें हो, ऐसी चीजों को याद रखता है। क्लास में आपने लास्ट वीक क्या किया था अगर मैं कहूं तो आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा, पर अगर मैं आपको कहूंगा लास्ट टाइम आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे गए थे या फ्रेंड्स के साथ, उसके बारे में बताइए, तो वो चाहे पिछले साल भी आप गए थे, तो वो आप मिनट बाय मिनट, एवरी मिनट उसका एक्सप्लेन कर सकेंगे। इतने बजे उठे, ये गए, यहाँ पे। इसका मतलब हमें ब्रेन को समझना है। दुनिया के बेस्ट मेमोराइजर जो हैं वो यही करते हैं। दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, कि अपनी जो भी इंफॉर्मेशन को आपको याद करना है उसको इमेजेस में कन्वर्ट कीजिए बाय द यूज ऑफ योर इमेजिनेशन। ये जो मैंने आपको स्कैंडियम में कन्वर्ट किया, ये इमेजिनेशन से किया ना। तो इमेजिनेशन एक ऐसा आपके पास फैकल्टी है जिसका 98% लोग इस्तेमाल नहीं करना जानते। अगर आपको एक ड्रीम को पूरा करना है, ड्रीम को विजुअलाइज करना है, दैट ऑल्सो हैज टू बी डन इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, तो ये मेथड से आप लंबे पैराग्राफ्स को याद कर सकते हैं। आप इससे अभी एक स्टूडेंट का मैसेज था, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। किसी ने लिखा था कि वोकैबुलरी कैसे याद की जाती है। वोकैबुलरी के लिए निमोनिक्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं मास्टरी नहीं की, मैंने देखा, मैं करने लगा था, काफी काम किया, फिर मुझे पता चला यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे इंग्लिश टीचर्स ने निमोनिक्स डाले हुए हैं। तो कोई भी वर्ड को याद रखना हो, जैसे एक वर्ड मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, आपने वोकैबुलरी के बारे में पूछा था, एम्बल। एम्बल का मतलब होता है स्लो वॉकिंग। अब ये वर्ड अगर आपको फीड करना है, तो मैंने अपने मन में एक इमेज बनाया कि एम्बल को मैंने कैमल के साथ रिलेट कर दिया। कैमल वॉक स्लोली नॉर्मली, और उसके ऊपर बैक के ऊपर मैंने एक हैवी लोड इमेजिन कर लिया। अब जब भी एम्बल वर्ड मेरे सामने आता है तो एम्बल से कैमल याद आता है, और कैमल वॉक स्लोली, तो मुझे उसका मतलब याद हो जाता है। अगर आप इस तरह से करोगे धीरे धीरे, धीरे धीरे, क्यों? मान लीजिए इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मड इन योर हैंड इज फुल ऑफ मड, एंड यू वांट दैट मड टू स्टिक ऑन द फ्रंट वॉल, what will you do? You will hold all that mud and throw it with full force, and what will happen? Maybe 5 to 10% will stick and rest of it will fall, right? तो धीरे धीरे क्यों करना है
क्योंकि इफ यू ऐड सम सीमेंट इन इट and you do it slowly on the wall, take some time, you can stick more than 99% of that material on the wall. So students, what you do, you in colleges and universities, I know maybe in schools it is different slightly. कॉलेज में क्या होता है कि पूरा सेमेस्टर मस्ती, वेलकम पार्टी, फेयरवेल पार्टी, ट्रिप जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जब पेपर की डेट शीट आती है दे स्टार्ट कलेक्टिंग द नोट्स। अब टेंशन के दिन शुरू हो गए, अब वो क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा मड एकदम से वॉल पे स्टिक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ब्रेन में इतना सारा डाटा फीड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोज हु आर द टॉपर्स इन योर क्लास, आप सोचते होंगे कि वो कैसे पढ़ते हैं, उसके नंबर कैसे आ जाते हैं। दे आर रेगुलर इन देयर क्लास, वो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज करते हैं, तभी वो टॉपर्स हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि आप गिल्टी ना फील करना कि हम नालायक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी हैबिट को चेंज कर लो, सिर्फ एक हैबिट कि वी हैव टू डू इट स्लोली, जिसके बारे में मैं लास्ट में मैम आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर 15 मिनट जब आपके पास या 10 मिनट रह जाएं तो यू टेल मी, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज एंड में इनको बताना चाहूंगा, या मैम आपके मुझे बता दें कि 10 मिनट्स रह गए हैं, तो आई विल वाइंड अप विद दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट। आई होप अभी है मेरे पास टाइम, आई एक्सपेक्ट। यस यस सर, यू कैन कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स, जो बात मैं आपको कह रहा हूं कि धीरे धीरे अपने माइंड में ऐड कीजिए। जैसे एक वर्ड है सैंग्विन, अब सैंग्विन का मतलब होता है चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक। अब उसका मतलब मैंने कैसे याद रखा हुआ है कि मैंने पेंगुइन के साथ रिलेट कर दिया। आपने पेंगुइन देखा है, टीवी में देखा होगा, तो वो देखने में बड़ा फनी सा और चीयरफुल सा और ऑप्टिमिस्टिक सा एनिमल लगता है ना, तो मैं उसके साथ लिंक कर दिया, सैंग्विन इज पेंगुइन, और उससे इमीडिएटली मेरे माइंड में मतलब आ जाता है कि ऑप्टिमिस्टिकली चीयरफुल, दैट इज सैंग्विन। तो इस तरह से ऐसे निमोनिक्स आपको बहुत सारे गूगल पे और यूट्यूब पे मिलेंगे, जिससे आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने जीके के बारे में पूछा, तो मैंने केबीसी को चैलेंज किया, इसलिए मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं मैंने क्या किया, और आप 2 मिनट से नहीं सब कुछ समझ जाओगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, तो उनको थोड़ा बताया जाए वो ज्यादा करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनको सारा कुछ बता दिया जाए फिर भी उनके सवाल खत्म नहीं होंगे। तो बी इन द फर्स्ट कैटेगरी। ओके, वो क्या है कि आप किसी भी क्वेश्चन को जब याद करो, तो वो क्वेश्चन का एक कीवर्ड होगा, एक सेंट्रल वर्ड जो जिसको बोल सकते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ नहीं, आप अभी आपको नहीं पता, नहीं कर सकते, पर आप एक्चुअली कर सकते हैं। जब एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। मैंने चैलेंज क्यों किया था, क्योंकि मैंने ना फ्यू वीक्स की प्रैक्टिस में, फ्यू डेज की प्रैक्टिस में 5 जनरल नॉलेज की बुक्स याद कर ली थी। ऐसे एक एक बुक में 400-500 क्वेश्चन थे। मैं उसको फन वे में लेता गया, आउट ऑफ एक्साइटमेंट करता गया, और फिर मैंने वो किताबें 5 अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, जिस किताब में से जो मर्जी सवाल पूछो, आई विल आंसर यू। तो ये जब एक्सरसाइज में 100% सक्सेस मिली, तो मुझे लगा कि मुझे केबीसी को चैलेंज करना चाहिए। लोग तो एक रेलवे स्टेशन से केबीसी की बुक खरीदते हैं और उसको खरीद के और केबीसी में चले जाते हैं और जीत भी आते हैं कई। तो मैंने कहा ये काम तो बहुत मुश्किल नहीं है, आई कैन मेमोराइज अनलिमिटेड। उसका क्रक्स क्या था, मैंने कैसे किया, मैं किसी क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ता नहीं था, मैं क्या करता था, इसके बाद नमित शर्मा का क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, मैथ्स फार्मूला, क्योंकि अगर स्टूडेंट ओरिएंटेड टॉक रहेगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो और भी कईयों की हो सकती है। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स व्हिच आई टीच इन माय ट्रेनिंग, पर अगर आपके सवालों के बेस में चलता हूं, तो वो क्या है कि यू हैव टू एसोसिएट द आंसर विद योर क्वेश्चन, द की वर्ड ऑफ योर क्वेश्चन। अब इन दोनों को एसोसिएट करने के लिए मैंने हर क्वेश्चन के लिए अपने दिमाग में इमेज बनाया। आपको लगेगा कि 5 बुक्स, 500 क्वेश्चन, 2500 इमेजेस बनाए, तो मैंने आपको बताया आपका ब्रेन जो है ना वो अनलिमिटेड। ये 2 एक्साबिट्स का डेटा कुछ साइंटिस्ट ने वैसे ही दिया हुआ है कि भाई इतनी कैपेसिटी है, पर ज्यादातर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये अनलिमिटेड है कैपेसिटी आपके ब्रेन की, अनलिमिटेड, राइट। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन मैं आपको एक, जैसे मुझे कुछ नेशनल गेम्स याद रखनी है कुछ कंट्रीज की, लेट्स से जो है चाइना है, चाइना की मैंने टेबल टेनिस जिसको पिंग पोंग रखते हैं। आपके सवाल बड़े सामने आ रहे हैं, मुझे डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, बट दे आर गुड क्वेश्चंस, तो मैं सबके क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब ये ना हो कि सारे क्वेश्चन लिखने शुरू कर दो और मेरे को सुनो ना, क्योंकि यू वांट कि आपके क्वेश्चन आंसर हो। जो भी मैं जवाब दूं आप सुनिए जरूर, और टाइप करने में टाइम कम लगाइएगा। तो वो क्या है कि नेशनल गेम के लिए मैंने चाइना का एक शाओलिन टेम्पल का इमेज गूगल पे सर्च किया, किसी भी टेम्पल का मुझे सामने दिख गया, वो इमेज को मैंने अपने माइंड में स्टोर किया। इमेज एक लोकेशन पे होना बहुत जरूरी है।
ओके, लोकेशन पे। तो मैंने वो लोकेशन ली, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो उस लोकेशन पे मैंने एक टेबल टेनिस का बड़ा सा टेबल इमेजिन किया, और दो लोग जो हैं टेबल टेनिस खेल रहे हैं। जब भी मुझे पूछेगा कोई चाइना की नेशनल गेम, तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली वो इमेज आ जाता है, एंड आई इमीडिएटली से इट्स टेबल टेनिस। अगर मैंने इंडिया और पाकिस्तान की हॉकी की गेम को याद रखना था, तो इंडिया गेट को मैंने इमेजिन कर लिया। इंडिया गेट के अंदर से मैं, यू माइट हैव बीन टू दिल्ली, मोस्ट ऑफ दिल्ली जा चुके होंगे, वहां पे इंडिया गेट देखा होगा। नहीं देखा तो गूगल इमेजेस पे जाइए तो आपको नजर आ जाएगा, राइट। तो वो उसके अंदर मैंने एक ग्राउंड इमेजिन की जहां पे हॉकी का मैच चल रहा है, एक तरफ इंडिया की टीम है, एक तरफ पाकिस्तान की टीम है। इट इज मेमोराइज। तो इस तरह से अगर आप इमेजेस बना के एसोसिएट करके, हर क्वेश्चन पे टाइम लगाना है। और दूसरी चीज कि जब मैंने एक बुक कर ली, तो अगली बुक करने से पहले पूरी पिछली बुक रिवाइज की पहले। कंसोलिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके ऊपर मैं लास्ट जो 10 मिनट्स अभी कहे हैं वो मैं उसी के ऊपर लगाऊंगा। कंसोलिडेशन कैसे की जाती है, डेटा को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे लेके जाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। वो उसके ऊपर मैं लास्ट 10 मिनट्स उसी के लगाऊंगा, एंड दैट विल चेंज द वे यू लर्न, चेंज द वे यू रिमेंबर द थिंग। और उसको सुनने के बाद आपकी जो परसेंटेज है वो 10 से 15% बढ़ सकती है, और आपके जो स्टडी आवर्स हैं वो हाफ हो सकते हैं। हो सकते हैं, मैं क्यों कह रहा हूं, अगर कोई उसको अप्लाई करेगा तो 100% हो जाएंगे, और अगर अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए हो सकते हैं वर्ड मैंने कहा। आई एम नॉट हेयर टू गिव यू होप, आई बिलीव इन दिस थिंग, एनीबॉडी कैन डू इट। आप में से कोई भी इसको कर सकता है। बैकग्राउंड डज नॉट मैटर, कुछ नहीं मैटर करता। आप गांव से हैं, शहर से हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, व्हाट मैटर्स इज यहां पे क्या है। ओके, तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को रोज के चाहे 10-15 ही करें, रोज के, बट करते जाएं तो साल में आपके 4500 हो जाएंगे। गिव सम टाइम। ये नहीं कि मेरा अगले महीने एग्जाम है सर, मुझे ट्रेनिंग मेमोरी ट्रेनिंग दे दो, मुझे कहते हैं लोग मेरे को कुछ नहीं होने वाला अगले महीने, डोंट अटेंड माय ट्रेनिंग। एक महीने का काम नहीं है, एग्जाम दे लो फिर आना मेरे पास, फिर मैं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता तुम्हारा एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला। तुम जब आओगे तब मैं करवाऊंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा एग्जाम कैसे क्लियर किया जाता। तो गिव सम टाइम, धीरे धीरे आप इसको करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। एक सवाल था वोकैबुलरी का, हो गया। जनरल नॉलेज का मैंने आपको बताया। एक मैथ्स की डेरिवेशन के बारे में किसी ने पूछा, अगर आपके कोई मैथ्स के टीचर ऑनलाइन हैं तो लेट मी टेल यू, अगर मैथ्स की डेरिवेशन आपको याद रखनी पड़ रही है तो यू आर नॉट मेड फॉर मैथ्स। पढ़ते जाइए, बट डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मैथ्स। आई टेल यू, मैथ्स याद करने की चीज नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ रहे हैं तो आप कोई बुरे इंसान नहीं है कि मैथ्स नहीं आता, बट आप किसी और सब्जेक्ट में माहिर होंगे। मेरा एक दोस्त था बचपन का, उसके फादर कहते थे हमारी फैमिली में अगर कोई साइंस नहीं पढ़ेगा तो उसको मतलब हमारी इज्जत ही पूरी रिश्तेदारों में कम हो जाती है। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था उनका। वो लड़का उन्होंने 11th-12th तक खींच दिया उसको, फिर उसने बगावत कर दी और साइंस छोड़ के इंग्लिश ली। और आज की डेट में एक दिन में पता नहीं आइल्स की क्लासेस से या टॉफल क्या करवाता है, एक एक दिन में 1.5 लाख की कलेक्शन करता है। अब उसके फादर कहते हैं मैं गलत था, राइट। तो इसलिए आप किसी चीज के लिए बने हुए हैं। ऐसे आपको फालतू संडे वाले दिन भगवान वेले बैठे थे उन्होंने बना दिया, ऐसा नहीं है। यू हैव सम क्वालिटी, यू आर ए कंप्लीट पैकेज, वेदर यू आर गेटिंग 40% और 90% डजंट मैटर, यू आर ए कंप्लीट पैकेज इन योरसेल्फ। द डे यू डिसाइड, अभी किसी ने पूछा था सर गोल्स के साथ मोटिवेटेड कैसे रहना है, दैट इज जिस दिन आप गोल को, वो वाला गोल फाइंड आउट कर लोगे जो आपका अपना है, कहीं से उधार नहीं लिया हुआ आपने, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इंपोज किया होता है, या हमने कहीं नेबरहुड से देखा होता है, या लोगों को देखा कि आईएएस करनी है किसी का, वो उधारी होते हैं, वो उसका कोई फायदा नहीं होता। इट इज इनसाइड यू, इट इज विद इन यू। वो फाइंड आउट करने में एफर्ट लगाइए। अगर वो गोल मिल गया तो आपको कहीं से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरी दुनिया को मोटिवेट करोगे। आपको कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं मोटिवेशन, दैट इज कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन विच यू विल गेट। तो एक और चीज है जो मैंने अभी आपको बताई कि अपने डेटा को लोकेशंस पे ऑर्गेनाइज करना सीखिए। पीरियोडिक टेबल को ऐसे भी मेमोराइज कर सकते हैं। मैं पीरियोडिक टेबल तो हो गया, मैं आपको प्रेसिडेंट्स के नाम याद करने सिखाऊं कैसे। इंडियन प्रेसिडेंट्स के नाम 2 मिनट में सब याद कर सकते हैं, 2 या 3 या मैक्सिमम 4 मिनट। तो आप अपने रूम में बैठे हैं, उस रूम को इमेजिन कर लीजिए, पूरा रूम खाली कर दिया आपने। चलिए रहन दीजिए इमेजिनेशन में, देयर आर सो मेनी थिंग्स। I can see a switchboard, then a bed I can see, bed का left hand side, right hand side, then there is a store room, उसका डोर नजर आ रहा है, फिर एग्जिट रूम है, एग्जिट डोर है, फिर एक स्विच बोर्ड है, पीछे मेरे एक टेबल पड़ा हुआ है, इधर ऐसे कई लोकेशंस हैं। If you organize your data at locations, you will say this is called spatial memory, and our brain is very very sharp on it.
अगर मैं कुछ इमेजेस इन लोकेशन पे प्लेस कर दूं तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, आवर वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैंने उसके लिए एक इमेज इमेजिनेशन में बनाया कि राजेंद्र कुमार एक फिल्म एक्टर हुए हैं, मैं उनको जानता था, आप किसी भी राजेंद्र को जानते हैं, ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद ओवर देयर। ये इमेज मैंने माइंड में बना सकते हो, आप अपने माइंड में बना सकते हो। अब जब भी मैं उस लोकेशन पे देखूंगा मुझे वहां पे राजेंद्र कुमार का इमेज प्रसाद बांटते हुए याद आएगा, एंड इट इज इमीडिएटली हिंट मिल गया कि द प्रेसिडेंट्स नेम इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उनका नाम याद रखने के लिए सो इजी, राधाकृष्णन का स्टैचू हम टेंपल्स में जाते हैं देखते हैं, वो इमेज मैंने वहां पे इमेजिन कर लिया। नेक्स्ट वाज जाकिर हुसैन, उनके लिए मैंने MF हुसैन पेंटर हुए हैं, उनको एक कैनवस पे पेंटिंग करते हुए याद कर लिया। चौथे नंबर पे वीवी गिरी हुए हैं, वहां पे मैंने एक टेबल रख दिया चौथी लोकेशन पे और गिरी बादाम गिरी का ढेर लगा दिया, गिरी देखते ही मेरे दिमाग में वीवी गिरी। उनका हिंट चाहिए आपको, बता रहा हूं पूरा याद रखने, आपके ब्रेन को याद है वीवी गिरी और उसको हिंट देना हमने, सिर्फ एक छोटा सा हिंट, और ये हिंट देने का तरीका। तो 5th प्रेसिडेंट हुए, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, वहां पे मैंने अली बॉक्सर को एक बॉक्सिंग पंचेस मारते हुए इमेजिन कर लिया। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, नीलम इज माय कोलीग, संजीव इज माय फ्रेंड, नीलम और संजीव खड़े हैं वहां पे, कुछ बड़ा एक्शन दिखा दिया, बॉक्सिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिखा दिया मैंने, वो मेरे माइंड में इमेज बन गया। नेक्स्ट वॉज ज्ञानी जैल सिंह, टॉल पर्सनालिटी पंजाब के थे, उनको सब शेरवानी में देखते थे, तो वो इमेज मेरे दिमाग में क्लियर है, उनको वहां पे माइक पकड़ के स्पीच देते हुए देख लिया। नेक्स्ट वॉज वेंकटरामन, उसके लिए मैंने वीवीएस लक्ष्मण को ले लिया, वो उस पॉइंट पे बॉलिंग कर रहे हैं, वीवीएस लक्ष्मण को देखते ही आर वेंकटरामन। शंकर दयाल शर्मा, शंकर मेरे एक कुलीग का नाम है, शर्मा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उन दोनों का इमेज मैंने इमेजिन कर लिया। KR नारायणन मेरा अपना नाम, कुंवर राजीव है, तो मैंने अपने आप को वहां पे इमेजिन कर लिया KR, राइट। और उसके बाद हमारे पास आ गए, नेक्स्ट वॉज उनके बाद अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, वो साइंटिस्ट हैं, उनको वहां पे इमेजिन कर लिया, रिसर्च करते हुए इमेजिन कर लिया। देन प्रतिभा पाटिल, उनको मेरे एक मिसेस की फ्रेंड है, उनका नाम है, उनको किचन में काम करते हुए इमेजिन कर लिया। एंड देन प्रणब मुखर्जी, मैंने प्रणब रॉय को इमेजिन कर लिया, जो टीवी एंकर हैं, बियर्डेड, बड़े अच्छे स्पीकर हैं। और देन रामनाथ कोविंद, मेरे एक असिस्टेंट हैं मेरे कॉलेज में, उनका नाम रामनाथ है, उनको वहां पे इमेजिन किया। तो ये सारे प्रेसिडेंट के नाम एक लोकेशन पे मैंने 2 बार रिवाइज किए, प्रेसिडेंट के नाम याद हो गए। अब आप जनरल नॉलेज याद कर रहे हो, आप इन प्रेसिडेंट्स को पढ़ो, 15 मिनट 15 बार पढ़ने पे भी याद होंगे, पर फिर भी चांसेस हैं भूल जाएंगे, पर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आप कभी भी नहीं भूलोगे, सिर्फ टाइमली रिवाइज करना है। अब मैं लास्ट में इसको कंक्लूड करते हुए आपको ये बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेप था रजिस्टर और सेकंड स्टेप है रिव्यू। अगर आप दोनों स्टेप करोगे, रजिस्ट्रेशन बेटर कैसे होगी, देयर आर सो मेनी निमोनिक टेक्निक्स जो मैं इतने शॉर्ट पीरियड में डिस्कस नहीं कर सकता, पर वो टेक्निक्स अगर आप इस्तेमाल करो तो आपको पता चलेगा कि 1500 फोन नंबर याद रखने कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर डे ऑफ द वीक 10,000 ईयर्स का याद रखना चाहते हो तो सिखाने में 15 मिनट लगेंगे, प्रैक्टिस में 1 हफ्ता लगेगा, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। वोकैबुलरी के लिए मैंने आपको बताया एक चीज कि आप निमोनिक्स को देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मुझे मिले, बड़े अच्छे इंग्लिश के टीचर थे, इसलिए मैंने इस फील्ड को छोड़ दिया कि आई विल नॉट डू इट, क्योंकि पीपल आर ऑलरेडी डूइंग इट सो वेल, तो आई क्विट। वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर मैंने बहुत काम किया, पर मेरा एक टाई अप हुआ जयपुर की एक पार्टी के साथ, दे आर वेरी गुड इन वैदिक मैथमेटिक्स, तो मैंने कहा सारा काम मैं क्यों करूं, लेट अदर पीपल कोलैबोरेट विद अस, राइट। तो वो सारा कुछ आप कर सकते हैं, बट उसके लिए 6 घंटे का टाइम चाहिए होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डेटा को कैसे लेके जाया जाता है। उसके लिए एक एबिंगस कर्व कही जाती है, मैं आपको एक फिगर दिखाने की जरूरत नहीं, बड़ी इजीली समझ जाओगे। मान लीजिए आपने क्लास में आज एक 40-45 मिनट की क्लास लगी, आपको एक नया टॉपिक करवाया गया और मैम ने खूब जोर लगा के समझाया और आपको समझ भी आ गई। मैथ्स के लिए जो मैं बात कर रहा था मैं कंप्लीट कर दूं कि मैथ्स इज विद रिवीजन। एक फॉर्मूला लीजिए, उसके ऊपर 10 सम सॉल्व कर लीजिए, तो वो फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा। अगर सिर्फ फॉर्मूला याद कर लिया और सम ना सॉल्व किया तो मैथमेटिक्स हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए 25 फॉर्मूले हैं, हर एक के ऊपर 10-10 सॉल्व कीजिए, 250, और वो 25 के 25 फॉर्मूला आपको पूरी तरह से रट जाएंगे। दैट इज हाउ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज डन। इवन फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, वो जो मैं अभी मेथड आपको बताने जा रहा हूं शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी का, उससे भी आप कर सकते हो। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं मैं कि हायर फिजिक्स में 80% फिजिक्स समझ आती है, केमिस्ट्री भी, 20% कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें पढ़ाई के टाइम नहीं समझ आते, पर पेपर के लिए उनको याद करना जरूरी होता है। उन टॉपिक्स को आप इस मेथड से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे कर सकते हैं। कि आपने एक क्लास में एक टॉपिक कर लिया, अब हम क्या करते हैं, टीचर ने अपना पूरा जोर लगाते हैं, टीचर 99% टीचर जोर लगाते हैं और वो अपनी केमिस्ट्री रिएक्शंस और आल्सो
सहज लेन, इट इज लाइक द सेम जैसे मैंने मैथ्स के ऊपर बताया। तो इनको प्रैक्टिस से करना, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो टेक्निक बताऊंगा, पहली के बाद आप दूसरे आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो क्या करना हमने कि वो टॉपिक जो हमने पढ़ लिया, टीचर ने अच्छा करवा दिया, डोंट लेट इट गो, इसको जाने ना दो। जो टाइम 40 मिनट लग गए हैं ना आपके जिंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट उसको समझने में, हम उस टॉपिक को भूल जाते हैं। क्या होता है, आज टीचर ने करवाया, शाम तक, अभी टीचर ने क्लास में करवाया 100% आपके दिमाग में क्लैरिटी हो गई, अब वो शाम तक 60% रह जाएगा, एक हफ्ते तक वो 40% रह जाएगा, एक महीने तक वो 10% आपको याद रहेगा, टॉपिक था कोई, हाँ किया तो था। बट अब अगर आप महीने बाद करने लगे हैं तो आपको दोबारा वही 40 मिनट से 1 घंटा दोबारा लगाना पड़ेगा। दैट इज द टाइम यू वेस्ट इन योर लाइफ। अदरवाइज जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं और हम लोगों के पास भी 24 घंटे हैं। सिर्फ टाइम को मैनेज करना सीखना, ये टाइम बचाना कहां से है। ओके, तो आपको क्या करना होगा कि आपने 4 क्लासेस लगाई, 4 टॉपिक कर लिए, टीचर ने 1 घंटे, कॉलेज में 1 घंटे से 40 मिनट से 1 घंटे की क्लास होती है। अब आपको शाम को वो 60% तक रह जाएगा, इसलिए सेम डे आपको उसको रिवाइज करना है। अगर आपने क्लास में 1 घंटा लगाया था तो रिवीजन में, पहली रिवीजन में 10 से 15 मिनट लगेंगे, नॉट मोर देन दैट। और अगर 4-5 क्लासेस हैं तो 75 मिनट्स लगा के चलिए कि वो रेगुलरली आपको रोज लगाने होंगे। सारे नहीं करेंगे, अगर सारे करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का हमारा पेपर गायब हो जाएगा। हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं तो स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि सारे के सारे लोग सारे काम नहीं करते, तो आई डोंट एक्सपेक्ट, अगर आप में से अगर 100-150 स्टूडेंट्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, उनमें से 10-15 ने भी किया तो मेरी यहाँ पे आपके साथ टाइम लगाना सफल हो गया। आई एक्सपेक्ट मोर, आई थिंक मेरी टॉक्स में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट आई डू नॉट नो, आई कैनॉट सी यू। हमें तो ऑनलाइन टीचिंग में मैम ऐसे लगता है जैसे दीवारों पे से ही बात करके चले जाते हैं, बच्चे माइक भी ऑफ रखते हैं और वीडियोस भी ऑफ होते हैं, बीच बीच में पूछना पड़ता है आर यू विद अस। अदरवाइज जब क्लास में मैं जब लाइव ऑडिटोरियम में स्टूडेंट साथ इंटरेक्ट करता हूँ, आई कैन सी द ब्राइटनेस इन देयर आईज एंड दैट इज व्हाट फैसिनेट्स मी कि यस आई डिड माय जॉब वेल। आई होप इस ऑनलाइन क्लास में भी मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इसको अटेंड करें उनको फायदा जरूर मिले। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद रखिएगा, 0, 1, 7, 30, 90, 180। एनुअल सिस्टम में है तो 180, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो 90। 0, 1, 7, 30, 90। इज इट डिफिकल्ट? हो गया सबको याद? 0, 1, 7, 30, 90। अब आपको ये डेज हैं, एक कॉपी लगाइए इसको, इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए, जिसमें कम से कम 100 पेजेस हो। अगर एनुअल सिस्टम है तो 200 पेज वाली कॉपी, बड़ा रजिस्टर लगाना पड़ेगा। हर पेज पे डेट डाल दीजिए, उस दिन से डेट डालनी है जिस दिन से आप पढ़ना शुरू करोगे, आज नहीं। ओके, वो डेट डाल दीजिए, पहले पेज पे पहली डेट, दूसरे पेज पे नेक्स्ट 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 डेट डाल दीजिए। हर पेज को सेंटर में एक लाइन लगा के, एक अपर हाफ बन गया, एक लोअर हाफ बन गया। अपर हाफ इज फॉर फ्रेश टॉपिक्स, लोअर हाफ इज फॉर रिविजन टॉपिक्स। आज आपने क्लास में 4 टॉपिक किए, वो 4 टॉपिक अपर हाफ में लिख लीजिए, हिंट्स लिखने हैं उनके छोटे से टॉपिक्स का नाम बस। वही 4 टॉपिक आज के दिन को 0 मान के चलना आपने, वही 4 टॉपिक लोअर हाफ में भी लिखिए। नेक्स्ट डे इज 1, तो नेक्स्ट डेट में नीचे वाले हाफ में वो 4 टॉपिक लिखिए। 7th डे लोअर हाफ में, 30th डे लोअर हाफ में, 90th डे लोअर हाफ में, ये चारों टॉपिक आज ही आपने लिख देने। अब जब आप कल कॉपी खोलेंगे तो नीचे वाले 4 टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं, उनको आपने पहले रिवाइज करना है। मॉर्निंग टाइम में कर लीजिए, अच्छा, नहीं तो फिर शाम को आके आपको रिवाइज करना है उसी टाइम पे जिस टाइम पे रेगुलरली आप 1 से 1.5 घंटा लगाएंगे। वो 4 टॉपिक को पहली रिवीजन आपने 0 डे की थी तो 15 मिनट लगे थे, नेक्स्ट डे जब आप करोगे तो वो 5 से 7 मिनट में हो जाएगी रिवीजन। अब 7th डे जब आप बारी आएगी तो ऑटोमेटिकली पेज खुलेगा, तो आपको पता होगा ये 4 टॉपिक मैंने रिवाइज करने हैं, इनका वक्त आ चुका है, वो दोबारा 100% पे ले जाओगे। फिर वो 30th डे तक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गए। अगर 7th डे टू 30th डे आपका उन टॉपिक्स पे टेस्ट हो गया तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको आते होंगे। तो 30th डे को आपने फिर पेज खोला, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे 4 नए कीजिए, नेक्स्ट डे 4 नए कीजिए, और जिस दिन भी आप नए टॉपिक करें उस डे को 0 मान के चलिए, आगे 0, 1, 7, 30, 90। इस फॉर्मूले से मैं आपको दावे साथ कहता हूं कि आपकी परसेंटेज 10 से 15, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। Whatever you read, you don't let it go. You take it to your long-term memory for 90 to 180 days. ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए निकाली गई है।
अगर आप ब्रिलियंट हैं तो एक रिवीजन कम भी कर सकते हैं, अगर आपके परसेंटेज कम है तो थोड़ी सी रिवीजन, एक और 90 और 180 में एक और रिवीजन डाल दीजिए, दैट डजंट मैटर। एक आध रिवीजन का फर्क आप डाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, दिस इज नॉट माई रिसर्च, दिस इज अ साइंटिफिक रिसर्च। PhDs have been, people have done PhDs on this topic। तो अगर कोई ऐसी ब्रेन के बारे में नॉलेज आपको मिल रही है और फिर भी हम इसका फायदा ना उठाएं, और फिर वही हो टीचर क्लास में जोर लगा के करा रहे हैं, हम तो महीने बाद खोलेंगे, यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम, नोबडी एल्स। आप अपनी जिंदगी को ही खराब कर रहे हैं, किसी की जिंदगी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एक और चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग, दैट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज अगर आप डालें, जैसे अभी आप बैठे हैं, कोई शोर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं बोलते बोलते अभी लंबा सा सांस लेके, सांस तो लेना ही है, लंबा सांस लीजिए, 2-4 सेकंड के लिए रोकिए और फिर छोड़ दीजिए। डीप ब्रीदिंग से आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, और इवन आपकी नींद की जरूरत कम हो जाती है। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन का कोई भी मेथड अडॉप्ट कीजिए, डजंट मैटर। अगर आप ऑलरेडी आपके रिलीजन में ये सिखाया जा रहा है तो फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए दिल से, वैसे नहीं जैसे हमारे घर के बड़े होते हैं, वो पाठ करते हैं, बीच में कहेंगे बेटा देखना दूध उबल गया, बेटा देखना दरवाजा कोई है वहां पे, तो वो भी वर्क करता है पर 5% वर्क करेगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से पूरे दिल से करना सीखेंगे उसको, तो वो 100% वर्क करेगा, राइट। तो 100% और 5% में डिफरेंस क्या है कि लोग बहुत करते हैं पर इसको काबू नहीं कर पाते, और इसको काबू कौन करेगा? ये एक अलादीन का चिराग है, आपने सुना हुआ है, उसमें से जिन निकलता है जो कहता मेरे आका क्या आपकी ख्वाहिश पूरी करूं, वो कहता, आप कहते मेरी मर्जी की जिंदगी मुझे दे दो। तो आप सब के सब अलादीन के चिराग हैं, सिर्फ इसको कंट्रोल करना है, अदरवाइज जिंदगी चलती रहेगी, ये आपको सारी उम्र कंट्रोल करेगा और आप इसके गुलाम बन के रहेंगे। मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे समझ आ चुकी है, आज के बाद तुम वो नहीं सोचोगे जो तुम चाहते हो, तुम वो सोचोगे जो मैं चाहता हूं। एंड दैट इज कॉल्ड, मेरी जिंदगी 4 शब्दों से बदली, मन जीते जग जीत। कितना सुनते हैं, मूवी भी देखी थी, पर मतलब अभी समझ आया कि मन को जीत लेने वाला, दैट इज जग जीतना। और दुनिया में किसी से कंपीट ना कीजिए, अपने आप से रोज कंपीट कीजिए। आज मेरी मेमोरी में मैंने जो कुछ भी आपको बताया, आप एक चैप्टर के ऊपर ये अप्लाई करके देखिएगा। कोई भी चैप्टर एक उठाइए, आप चाहे केमिकल रिएक्शंस हो, अभी केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा, उसका सिंपल सा मेथड है, उसको मैं बोलता हूं हाई बाय टेक्निक। हाई बाय टेक्निक क्या है कि जो भी रिएक्शंस आपको याद करने हैं ना, उनके ऊपर एक बार 2-3 बार बड़ी ध्यान से नजर मार लीजिए, उसके बाद उसका पेपर आपने स्टडी टेबल के सामने टेम्परेरीली चिपका दीजिए। आप जितनी बार रूम में आए उसको देखना है और उसको हाय बोलना है आपने, फिर आप अपने रूम में काम कीजिए और जाते हुए उसको बाय बोल के जाना, उसकी तरफ देखना है। देखिए, आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% पिक करता है, पर आपका सब कॉन्शियस माइंड 100% पिक करता है। आपको पता भी नहीं आप क्या क्या नोट कर जाते हो, और जब आप उसकी तरफ देखते हो वो सारा डेटा विजुलाइज कर लेता है अपने दिमाग में, और आपके बार बार करने से वो याद हो जाएगा आपको। दिस हाई बाय टेक्निक्स वर्क लाइक मैजिक फॉर समथिंग, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई कैन टेल यू, बट ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, आप लोगों का भी स्कूल के टाइमिंग्स हैं, एंड फिर कभी मौका मिला तो और, बट इन चीजों को स्टूडेंट्स अप्लाई कीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कहता कि शायद आपको फायदा हो, अगर आपने इसको अप्लाई किया तो डेफिनेटली इस पूरे स्कूल की परसेंटेज जो है वो आने वाले टाइम में, अपने बच्चों को गोल देता हूं, बेटा हम ऐसे करते हैं कि जितनी परसेंटेज लेके आप एमएससी में आए हो ना, आप सबकी परसेंटेज 5% पिछली परसेंटेज से ज्यादा हो जाए तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। कैसे बनाना है मुझे पता है, आप सिर्फ मेरे मेथड को फॉलो करो। अभी तक तो मैं इसमें 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ, 2 साल से कोशिश कर रहा हूं, बट आई गिव यू दैट टारगेट कि जो भी आपके पिछले साल की परसेंटेज थी उससे सिर्फ 5% बढ़ाने की कोशिश कीजिए इस मेथड से, एंड यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। खाने पीने के बारे में पूछते हैं, मेमोरी के साथ क्या रिलेशन है? तो फ्राइड फूड कम खाया कीजिए एग्जाम्स के दिनों में, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए उसमें, बट एक जो एलिमेंट आपके उसके साथ जुड़ी हुई है मेमोरी के साथ, वो है आपकी मैं नीचे क्वेश्चन पढ़ने लग गया था, दिस इज क्षितिजा का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1 मिनट अगर हो तो मैं इसके ऊपर लगाना चाहूंगा मैम। कि पहले तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि बोरोन रिच फूड आपको खाना चाहिए, बोरोन रिच फूड। वेजिटेबल्स आप सारी खाते रहिए, बीन्स वगैरह खाइए, फ्रूट्स खाइए, उन सब में आपको मिल जाता है। पिज्जा में शायद नहीं मिलता, शायद बर्गर में नहीं मिलता, तो इसलिए वेजिटेबल्स की इनटेक, चाहे स्वाद लगती है नहीं लगती, बढ़ाइए वेजिटेबल्स की इनटेक, राइट। तो मैं आपको, मुझे इसलिए कह रहा हूं, मुझे पता 80% स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है। बाकी भी खाइए, कोई बात नहीं, जो खा रहे हैं कोई बुरा नहीं है, बट
वेजिटेबल्स की इनटेक जैसे मर्जी क्रश करके सूप में डाल के जिसमें मर्जी डाल के वो आपके ब्रेन को और शार्प करेगा। अभी एक क्षितिजा ने पूछा कि एट नाइट समटाइम्स वी थिंक, तो क्षितिजा आप बहुत बड़े लेवल की बात कर रही हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसको और एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए। ये आपका सुपर कॉन्शियस, देखिए हमारे पास एक कॉन्शियस है, एक सब कॉन्शियस है, एक सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। और ये नेविल गॉडर्ड एक स्पीकर का नाम है, आप जरूर सुनिएगा, NEVILLE गॉडर्ड, GODDARD। आप सिर्फ यूट्यूब पे डालिए, उनके बहुत से वीडियोस, पुराने स्पीकर्स हैं पर आज भी उनके ऑडियोज अवेलेबल हैं। ही सेज कि इंसान अपनी इमेजिनेशन को यूज करना नहीं जानता। अगर आप ड्रीमर हैं, आपने कोई ड्रीम देखा और वो आपका ड्रीम पैशनेट ड्रीम है, तो आपको सोने से पहले जब आप लेटते हैं गीगो प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। गीगो, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। लोग रात को लेटते हैं और जो दिन में नेगेटिव हुआ है, जो लाइफ में नेगेटिव हुआ, उसके ऊपर फोकस करते 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 सो जाते हैं। दे आर गोइंग टू मैरिनेट फॉर 7 to 8 hours, और जो गार्बेज है वो अंदर। और आज से आप एक हैबिट चेंज कर सकते हैं। अगर आप रात को सोते वक्त अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट को लेके सोना शुरू करें और धीरे धीरे अपने ड्रीम को डिफाइन करके अगर आप अपने ड्रीम में लिव करना सीखें, तो these things are very powerful because there are alpha, beta, theta stages of your consciousness। जब आप सोने लगते हैं तो आप थीटा स्टेज से गुजरते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो उस टाइम पे जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है वो आपके ब्रेन में लॉक हो जाता है फॉर 7 to 8 hours एंड इट गेट्स कनेक्टेड टू सुपर कॉन्शियस। और अगर आप गार्बेज फीड करके सोएंगे तो सुपर कॉन्शियस आपको एक एवरेज सी गार्बेज लाइफ देगा। अगर आप बेस्ट थिंग्स फीड करके सोएंगे तो यू विल गेट। तो ये हैबिट चेंज करनी बड़ी मुश्किल है। रात को सोते वक्त पॉजिटिव थॉट्स या अपनी ड्रीम लाइफ, उनके ऊपर फोकस कीजिए एंड मेक इट अ हैबिट कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं कुछ मिनट्स के लिए बैठिए एंड लुक फॉर व्हाट इज गुड इन योर लाइफ। क्या आपकी जिंदगी में अच्छा है, इसके ऊपर फोकस रखिए। बुरी 100 चीजें हो सकती हैं, कंप्लेन, क्रिटिसाइज, कंडेम 98% लोग करेंगे। कम आउट ऑफ दैट करिए। आई डोंट वांट टू कंप्लेन बिकॉज जो भी आज आपकी लाइफ है ना वो आपने खुद क्रिएट की हुई अपनी थॉट प्रोसेस से। इसको चेंज कीजिए, जिंदगी चेंज हो जाएगी। मैंने जिंदगी को प्रैक्टिकली इस चीज को अप्लाई किया एंड माय लाइफ हैज चेंज टोटली। आई शुड प्ले अ पॉजिटिव रोल इन मिलियंस ऑफ पीपल्स लाइफ कि उनकी जिंदगी भी चेंज होए बिल्कुल ऐसी जैसे मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूं। आप लोग भी बड़े आराम से जी लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। नंबर के ऊपर फोकस ना कीजिए, नेवर फील गिल्टी। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी और आपके इतने अच्छे स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया। Really, the questions asked, they were so good. I'm really impressed with your students and I hope I am able to give you answers. Anybody who wants to send me questions, तो मेरे को सर्च करना मुश्किल नहीं है, आप मुझे पर्सनल क्वेरीज भेज सकते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें मैं ग्रुप को ओपन करता हूं फॉर पर्टिकुलर टाइम ताकि लोग अपने क्वेश्चंस पूछें और मैं उनको जवाब दूं। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ पर्सनल काउंसलिंग इन द फील्ड ऑफ मेमोरी एज वेल एज माइंड, राइट। तो मुझे कुंवर राजीव के नाम पे कोई भी सर्च कर सकता है। देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम टू फाइंड मी ऑन गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं भी। थैंक यू सो मच जी। इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम। Thank you so much, sir. A simple thank you is too small a thing to say. We can really not thank you enough for what a complete package you have given to the students of this great institution in roughly 1 hour 20 minutes. And I know all of them will be benefited, will be wrong. They have been benefited. Thank you. So speaking positively, I must say that all the students, rather all the participants, including my faculty members, we are really benefited by your this talk. Your memory is really remarkable. I have no words to say. The way you showed it right in the beginning, and we keep reading about your achievements. We at DAV, in the DAV family, are really proud to have teachers like you in DAV fraternity. Thank you so And much. being Punjabis also, I should say that we Punjabis are proud of you, that you have taken the name of Punjab, taken the name of Jalandhar city to international levels. And what you said in your talk, that man jeete jag jeet, ye जपजी साहब में ये गुरबानी में ये तुक है, गुरु नानक देव जी की लिखी हुई। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने मन के ऊपर अगर हमने जीत पा ली
तो दुनिया बहुत छोटी चीज है फिर। तो बच्चों के लिए मैं आपके सारे पॉइंट्स में नोट करती जा रही थी साथ साथ, मैं अब उसके ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगी, और नेचुरली मेरी मेमोरी वैसी नहीं है कि मैं मुंह जुबानी सारा बता सकूं, सो इसलिए मैं साथ साथ पॉइंट सारे नोट कर रही थी। तो वील कीप टॉकिंग टू द चिल्ड्रन, एंड आई नो अगर वो प्रैक्टिस करेंगे बच्चे तो वाकई वो बहुत ग्रेट हाइट्स अचीव कर सकते हैं। ड्रीम्स रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल ही 15 अक्टूबर को हमारे पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन था, एंड ही हैज सेड इट, ड्रीमिंग स्मॉल इज नॉट गुड, इट्स अ क्राइम. And why did he say so? Because he, as a scientist, knew it that the brain, human brain, has immense potential. और जैसे आपने भी बोला कि ब्रेन की जो मेमोरी पावर है वो कितनी है, कि people say that the greatest mind of 20th century, Albert Einstein, also could not use the whole potential of his brain, though he was the brightest mind on the earth in the last century. तो आप सर अपने माइंड को इतना प्रैक्टिस करके, इतनी पॉजिटिव वर्ड्स, सही वर्ड्स अपने लिए यूज करके अपने ड्रीम को आपने अचीव किया. सो वी आर रियली रियली वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड आई विश एंड प्रे कि आप और बुलंदियों पे आपका नाम पहुंचे. और केबीसी तो आई थिंक आपका बाएं हाथ का खेल है, एंड वी रियली वुड लाइक टू सी यू देयर बीटिंग द केबीसी कंप्यूटर, right, with your memory. And dear students, I hope all of you must be feeling very happy that today's afternoon is really very well spent with sir, and I exhort you all to use the memory techniques he has given. राइट, अपने आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करिए. आप डेली क्लासेस अटेंड करते हैं स्कूल में, कोचिंग सेंटर्स में, और फिर उसके बाद भी अगर आप अपने ड्रीम स्कोर्स, ड्रीम रैंक्स, अपनी एडमिशंस in the most coveted universities of the world or institutes of higher education में आप अगर नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो है ना वो उदासी तो सबको होती है, सबको ऐसा लगता है कि शायद मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाया. सो लव योर सब्जेक्ट्स, जो भी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स आपके पास है, वेदर यू आर राइट नाउ इन द साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, अपने सब्जेक्ट्स को प्यार करिए. सर ने बड़ी छोटी छोटी बड़ी अच्छी बातें आपको बताई हैं. हाई बाय टेक्निक, आते जाते अपनी अपनी किताबों को, जैसे सर ने बोला पीरियोडिक टेबल का चार्ट लगा लो या फॉर्मूला का चार्ट लगा लो, और उसको आते जाते जरा हाई बाय बोलो. एंड इन माय लैंग्वेज आई नॉर्मली से लव योर सब्जेक्ट्स, क्योंकि कई बार हम जब 11th में जब हम अपनी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स करते हैं, तो शायद हम पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, या सोसाइटी का जो प्रेशर है कि नहीं कॉमर्स स्ट्रीम बहुत बढ़िया है, या नॉन मेडिकल होना चाहिए, या डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, बच्चे की शायद चॉइस नहीं होती और हम सब्जेक्ट ले बैठते हैं. तो फिर कोई बात नहीं है, सक्सेस उसके थ्रू भी आ सकती है. जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू आर स्टडिंग, राइट. और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप साइंस के लिए नहीं बने हैं और आप जबरदस्ती आपको साइंस करवाई जा रही है. सर ने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि जिस फैमिली में साइंस ना पढ़ना जो है वो एक बहुत बड़ा कसूर माना जाता था, और वहीं पे वो इंग्लिश के थ्रू, इंग्लिश के एक्सपर्ट बन के, दैट पर्सन इज रियली सक्सेसफुल. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आप अपनी आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है. क्या सिर्फ पैसा कमाना, अच्छे कॉलेज में जाना, डॉक्टर बन जाना और अच्छा पैसा कमाना ही आपकी सक्सेस की डेफिनेशन है, या अपनी एक पहचान बनाना और उसके साथ साथ सोसाइटी के लिए हम कुछ करें, हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, हमें लोग कल को जब हम इस धरती पे नहीं होंगे हमें किस नाम से याद करेंगे. वो आई थिंक बहुत बड़ा एक गोल है, और हर इंसान जो यहाँ पे पैदा हुआ है उसको कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट रोल देके ईश्वर ने या नेचर ने यहाँ पे भेजा है. सो दैट्स व्हाट यू रियली नीड टू थिंक अबाउट, राइट. So on behalf of the faculty of the school, and on behalf of all the students and DAV management, sir, I am extremely thankful to you for sparing time for this webinar. We have been trying to plan and get this webinar conducted since long, but finally that time was destined for today only.
So I hope in future also, whenever my students and faculty would like to have and listen to you once again, to have you amongst us, you will always be available. And till then, good luck to all the listeners, students as well as teachers. एंड हम मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में से ही कुछ ऐसे बच्चे निकलें जो कि सर के शागिर्द बन के इस रास्ते पे चलें और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स अपने लिए बनाएं, ताकि मेरे से भी आगे निकले, मेरे से भी आगे Thank you. निकले. Definitely, I Thank wish you so much. all the best to all your students and faculty members and your whole institute, Yeah, which is doing because so well. that brings such proud moments to the institution. Yeah, definitely. है ना, जब भी ऐसे रिजल्ट्स आते हैं. सर आज मैं ज्वाइन कर चुकी थी वेबिनार. आई वाज जस्ट वेटिंग कि कुछ और बच्चे आ जाएं, फिर मैं आपको कॉल करूं. और इन बिटवीन मेरे पास एक स्टूडेंट आया हमारा इसी साल का, +2 नॉन मेडिकल पास आउट, प्रणव बत्रा. जेई बी आर्क में उसका ऑल इंडिया रैंक 25th आया. Very good, very good. तो वो बच्चा और साथ में उसके दादाजी मुझे ऑफिस में मिलने आए. तो जब बच्चे ऐसे सक्सेस अचीव करके आते हैं तो सिर्फ वही खुश नहीं होते, उनका परिवार ही खुश नहीं होता, पूरी इंस्टीट्यूशन खुश होती है. बिल्कुल जी, बिल्कुल. Yes, and that's what we always aspire to have, such successes for all the students. Yeah. That come to this great institution. All of these students who joined today, they can do it. They might have got a hope today that yes, by bringing certain changes, they'll definitely do it. Few of them will definitely do it. एक और बात, मैं एज अ टीचर, जब क्योंकि रेगुलर जब आप टीचर होते हो ना, तो आपकी रोज इंटरेक्शन होती है बच्चों के साथ, और आप कितनी जो है कंट्रीब्यूशन कर सकते हो. तो आई ऑलवेज यूज टू राइट इट ऑन द बोर्ड, नॉट जस्ट स्पीक. ये लाइन बहुत कॉमन है, बहुत पुरानी है, दैट इवन नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल. लेकिन मैं बच्चों को कहती थी कि बेटे ये मैंने वर्ड लिख दिया कैपिटल लेटर्स में, इम्पॉसिबल, अब इसको आई एम पॉसिबल बना के दिखाओ. तो आई एम पॉसिबल तभी बनेगा जब उसमें वो एपोस्ट्रोफी लगेगा आई के बाद. वो जो कॉमा लगाना है ना, वही मेहनत है, वहीं पे सारा भेद है. अदरवाइज तो इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल को अगर आई एम पॉसिबल रीड करना है तो वो कॉमा तो लगाना पड़ेगा ना बीच में आई के बाद. बस उसको पकड़ लो. बिल्कुल ठीक है. तो आपकी पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं ऑलरेडी, तो दैट पेज अ लॉट आपके इंस्टीट्यूट को आगे ले जाने में. अगर इंस्टीट्यूट का लीडर पॉजिटिव हो ना, तो फिर सब कुछ पॉजिटिव ही रहता है. तो दैट्स वेरी गुड. आपसे इंटरेक्ट करके अच्छा लगता है, जब भी किया इंटरेक्ट. I have enjoyed your words and also enjoyed the visit when I visited your institution. Yes, that was the beginning when I had started all this my journey, and at that time I came to your college, yes, to your school. And I remember at that time Dr. D.B. Sharma, your principal of the college, how proud he was. Yes, he was very proud. Your he achievements. Still he keeps on sending messages, and on every achievement he sends a positive vibe. And he is a thorough gentleman. Yes, yes, sir. Yes, sir. So thank you so much, sir. God bless you with thank more. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Mrs. Bharti Kapil, for organizing this. Thank you, Mr. Deepak, and all the faculty members for sparing time. Thank you. God bless. Thank you so much. Thank you.